नमस्कार, प्रणाम सभी सारे समस्त जग के जितने भी प्राणी अलग अलग कॉन्टिनेंट में जहां पर हैं। आज भारत की पवित्र भूमि से सुबह 9:30 पर आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और आज रविवार 30 अगस्त 2020 को एक और नई सुबह, एक और नया कार्यक्रम, और हम अपने प्रयास में कि शिक्षा को प्रासंगिक कैसे बनाएं और विद्या से अध्यात्म विद्या की तरफ का ये जो सफर है, ये जो यात्रा है, ये कैसी है, उसमें हमारे साथ आज की सुबह प्रोफेसर सत्येंद्र धीमान फ्रॉम द वुडबरी यूनिवर्सिटी, बर्बैंक्स, कैलिफोर्निया, यूएसए से जुड़े हैं। आज की सुबह आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हुए हम अपनी यात्रा में आगे चलते हैं। सभी विश्व के सभी प्राणियों का आज की सुबह हमारी तरफ से भव्य स्वागत। Ladies and gentlemen, on behalf of ICSI, International Chamber for Service Industry, we extend you very hearty welcome wherever you are in the different continents, different part of the world. Now, Monday to Sunday, earlier it was Monday to Friday, now it is Monday to Sunday. 7 to 8 p.m. we have got making education relevant, and we have got various inputs, various stakeholders. But every Sunday, we have got a very special program for you that is on earlier Srimad Bhagavad Gita. And now from the course of Srimad Bhagavad Gita, we are moving with India's Upanishads, और उसके बारे में आप लोगों के साथ वार्तालाप होता है सुबह 9:30 से 11 तक। तो आइए उसी में आगे बढ़ते हैं। आज की शाम भूलिएगा नहीं, आज शाम को हम लोग मिल रहे हैं 5 बजे दोबारा, और आपको लेके चलेंगे आसियान में 650 मिलियन पॉपुलेशन, और वहां पर बेसिकली आज नॉर्थ ईस्ट इंडिया और आसियान के एजुकेशन की बातचीत होगी। और आज बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ आसियान से। तो शाम को 5 बजे खासकर जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हमारे सभी निवासी हैं और आसियान कंट्रीज के जो हमारे साथ जुड़े हैं, आज की शाम मिलते हैं। इस समय कोविड-19 में बहुत समस्या आ रही है, बेसिकली रोजगार को लेकर। 8 करोड़ से ज्यादा लोगों का रोजगार जा चुका है, और बहुत सारे प्राणियों को तकलीफ हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है घर का खर्चा चलाने में। तो खासकर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज को मद्देनजर रखते हुए आप अपने प्रेजेंट बिजनेस को कैसे बचा सकते हैं और आगे क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए, उसके लिए शाम को 7 बजे आज आपसे बातचीत होगी, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज। तो भूलिएगा नहीं, शाम को 5 बजे नॉर्थ ईस्ट इंडिया और आसियान, और शाम को 7 बजे आज रविवार 30 अगस्त को माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। सो आप सभी का आज की सुबह स्वागत करते हुए हम आगे चलते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं इस समय ऑल द वे फ्रॉम द वुडबरी यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया, बर्बैंक, प्रोफेसर सत्येंद्र के धीमान जी, who holds his PhD and his specialization, MBA, MCom, gold medalist, MPhil, and a couple of other things. Now let me quickly share with all of you. Professor Dhiman is recognized as a lead thinker for his pioneer contribution to the field of holistic leadership, workplace spirituality and well-being, and sustainability. He's a sought after keynote speaker at the regional, national, and international conference. In 2013, he was invited to be the opening speaker at the prestigious TEDx conference in California. He has won several prominent awards in teaching, scholarship, and services, including the prestigious ACBSP International Teacher of the Year Award, where he was selected as a winner among 500 member universities in the USA. It's a very prestigious award, ladies and gentlemen. This international award is the highest possible honor that can be bestowed upon any business faculty in a given year. He is educated at 3 different continents. He belongs to India. He belongs to Punjab. Near Jalandhar, there is a place called Kartarpur. He holds a PhD in social sciences from Tilburg University, Netherlands, a doctorate in organizational leadership from Pepperdine University,
which is in Los Angeles, California, near Malibu. An MBA from the West Coast University, Los Angeles, and a master's degree in the commerce from Punjab University, Chandigarh in India, having earned his gold medal from the Punjab University. So all teachers, all students, all people those are in India, they should be proud of him. He has also completed advanced executive leadership program at the Howard, Stanford, and Wharton. Professor Devan went to USA as a Rotary International Scholar in the year 1988. And after having taught at the prestigious DAV College, Jalandhar in India for almost 10 years, he's an author, translator, editor, co-author, co-editor of more than 35 management, leadership, spirituality, and sustainability books and research monographs. He has also translated several Indian spiritual classics into English, including Sahaj Gita and Krantikari Santvani. Currently, he serves as the Associate Dean, Chair, and Director of the MBA program and as the Professor of Management at the Woodbury University, Burbank, California, USA. He has served as accreditation consultant, evaluator, and a site visit team leader for the Accreditation Council for Business Schools and Programs, that's called ACBSP, for more than 20 universities in America, Canada, Europe, and Asia. Professor Devan is the founder director Forever Fulfilled, a Los Angeles-based well-being consultancy that focuses on workplace wellness, workplace spirituality, and self-leadership. Ladies and gentlemen, for me in particular, it's indeed a great pleasure and it's a privilege that he was selected by our governing body of the International Chamber for Service Industry, and he served as a president of the ICSI from 2016 to 2018, and now he serves as distinguished patron of the International Chamber for Service Industry, which is bringing this program to you. These are the timeline books from Professor Satyendra K. Dhimanji. From time to time, he had been sharing. They are available on Amazon. Those of us are interested, we can have a look over there. And of course, this particular journey, which we have started, where Vidya se Adhyatam Vidya ki aur. So every Sunday, we are bringing this program to you. So those of us, those are interested to get further into details, because this video, all the videos of the previous programs and this video also is going to be available on the YouTube channel that is of ICSI, Dr. Gulshan Sharma's page. His English translation of Sahaj Gita, that is also available online, free to download with the link given over here. Now, ladies and gentlemen, International Chamber for Service Industry during this lockdown pandemic, our efforts are how to make education relevant, and this morning's program is dedicated to the ideal of education should be to remove the ignorance and to provide the desired knowledge and competencies for the global peace. With these words, we extend a very hearty welcome to Professor Satyendra Dhimanji, all the way live from California, and I request you to kindly take on the floor, sir. वासुदेव सुतं देवं कंस चानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। ओम सहना भवतु सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। We are going to get into Katho Upanishad today, a very serious undertaking. I always request Sharmaji to shorten my introduction. My introduction is very simple. In one sentence,
लवर ऑफ लवर्स ऑफ विजडम। जो ज्ञान के प्रेमी हैं हम उनके प्रेमी हैं। बस यही इंट्रोडक्शन है हमारी, इससे ज्यादा काम नहीं है। और ये हमने अपने गुरुदेव विल डुरैंट जो अमेरिकन हिस्टोरियन हैं उनसे सीखा, टू बी ए लवर ऑफ लवर्स ऑफ विजडम। जो विजडम के प्रेमी हैं उनके हम प्रेमी हैं। तो देयर वाज ए क्वेश्चन आस्क्ड लास्ट टाइम, हमारे एक बड़े प्यारे हैं जुड़े हुए इंटरनेट में वेबिनार में, अधिकारी जी, शायद सिक्किम से हैं, शर्मा जी को ज्यादा पता है इन चीजों का। तो उनका एक बहुत ही प्यारा प्रश्न था। मैंने फेसबुक पर उसका कोशिश भी की जवाब देने की जितनी मेरी समझ है, मगर आज मैं वहां से शुरू होकर हम कठोपनिषद की कथा जो है नचिकेता की, क्या खूबसूरत नाम है कठोपनिषद, और कथा से शुरू होता है नचिकेता की। और अगर हमें नचिकेता की कथा पूरी समझ आ जाए, अध्यात्म विद्या की ये खूबसूरती है। कृष्णामूर्ति जी कहा करते थे, द फर्स्ट स्टेप इज द लास्ट स्टेप। बस पहला कदम, नहीं तो बस एक कदम गलत उठा था राहे मंजिल में, राहे शौक में मंजिल तमाम उम्र हमें ढूंढती रही। अगर पहला कदम ठीक नहीं आपने उठाया तो फर्स्ट स्टेप इज द लास्ट स्टेप। तो उनका प्रश्न ये था अधिकारी जी का कि भगवत गीता, जो भगवतमयी गीता है, जो श्रीमद् भगवत गीता है, उसका जो चरम श्लोक है 18th चैप्टर 66th श्लोक, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, कि अब इसका शाब्दिक अर्थ तो ये निकाला जा सकता है कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। अब ये शाब्दिक अर्थ है, इससे अनर्थ हो सकता है, ये अर्थ ऐसा है, इससे अनर्थ हो सकता है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता तो सारी ही हमें धार्मिक बनाने के लिए है। उसका पहला शब्द ही धर्म है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, जो धर्म की भूमि है और कर्म की कर्म की भूमि है। क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, हर क्षेत्र में, एवरी वॉक ऑफ लाइफ डू व्हाट इज राइट। तो ये अंत में जाकर आखिरी श्लोक जो भगवान श्री कृष्ण ने बोला, उसमें ऐसे क्यों कहा अर्जुन को कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरण व्रज, मेरी शरण में आ जा। मामेकम, वहां पर माम शब्द का मीनिंग पिछली बार भी बताया गया था, शेयर किया गया था कि जहां भी भगवत गीता में माम शब्द का इस्तेमाल होता है, वहां पर भगवान अपने आप को शरीर रूप में नहीं कह रहे, और बहुत बार इस्तेमाल करते हैं। बहुत बार मनमना भव कहते हैं, मई अर्पतो मनोबुद्धि कह देते हैं, आसीत मत परा कह देते हैं, मत परतरम न किंचित अस्ति धनंजय उनको कह रहे हैं। बहुत बार ये शब्द आया है। तो एक तो हमेशा याद रखिए, wherever the word mam is used, Lord Krishna is referring to the supreme self in all of us. हमारे अंदर जो परम परमात्मा बैठे हुए हैं उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो सब धर्मों का परित्याग करके जो वो परब्रह्म जो है तेरे अंदर बैठा हुआ अर्जुन, उसकी शरण ले। तो प्रश्न ये है उनका, अधिकारी जी का बड़ा प्यारा प्रश्न है कि धर्म शब्द का मतलब क्या है। यहां पर मतलब क्या है? यहां पर शब्द सामान्य है, अर्थ सामान्य नहीं। कभी भी शब्दों के मीनिंग शब्दों के अर्थ से ज्यादा नहीं होते। ये सबसे पहली बात उपनिषदों के, भगवत गीता के, श्रीमद् भागवतम क्या विलक्षण ग्रंथ है। वो कहते हैं कि विद्यायाम प्रतिष्ठा भागवतम। अगर किसी व्यक्ति की विद्या की प्रतिष्ठा आपने लेनी है, लिटमस टेस्ट लेना है, तो उसका श्रीमद् भागवतम की समझ पर कितनी समझ आई उसकी श्रीमद् भागवतम की, वो कसौटी है ज्ञान की। तो हर शब्द जो है बहुमूल्य है। यहां पर धर्म शब्द का मतलब क्या है?
वो समझना है। अगर वो समझ आ जाएगा तो, और ये भी देखना है, ये गीता का चरम श्लोक है। यहां इसके बाद भगवान अपनी वाणी को विराम दे देंगे। इसके बाद वो कुछ नहीं, मतलब एक बार पूछेंगे आगे चल के अर्जुन को, मतलब कि इसके बाद वो जो ज्ञान की शिक्षा दे रहे थे खत्म हो जाएगी। अर्जुन से पूछेंगे वो कि क्या तूने मेरी बात ध्यान से सुनी, कच्चित एतत् श्रुतम पार्थ त्वा एकाग्रेण चेतसा, कि क्या तुमने मेरी बात ध्यान से सुनी, क्या तेरा अज्ञान जनित सम्मोह नष्ट हो गया, कच्चित अज्ञान जन सम्मोह प्रनष्टे धनंजय। वो पूछेंगे, मगर शिक्षा पूरी खत्म हो जाएगी इस 1866 पर। तो धर्म शब्द को छोड़ने का मतलब क्या है, तो समझना ये पड़ेगा कि भगवत गीता की जो टीचिंग है ना, वो एक पिरामिड की तरह है। वो भगवान जो हैं पहले सबसे बड़ी बात बता देते हैं, फिर धीरे 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 सूक्ष्म करते जाते हैं। अब इसके पहले उन्होंने ये कहा, तमेव शरण गच्छ सर्वभावेन भारता, कि तू उसकी शरण में चला जा। यहां उसकी कह दिया, तमेव शरण गच्छ, जिसके बारे में मैंने पहले तुम्हें बताया है, जो सबके अंदर बैठा हुआ है, विराजमान है, मूर्तिमान अंदर होके बैठे हुए हैं, उनकी शरण में चला जा। फिर कह दिया मेरी शरण में आ जा। तो धर्म को छोड़ने का मकसद ये है, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ेगा। तो अंदर से जो भाव आया वो ये है कि यहां पर अर्थ ये है, इसका गूढ़ अर्थ ये है कि धर्म को नहीं छोड़ना। तो आप कहेंगे जी ये क्या बात है, भगवान साफ कह रहे हैं धर्म को छोड़ना है, मगर उनका अभिप्राय देखना चाहिए। अभिप्राय क्या है, यहां पर अभिप्राय लेना पड़ेगा। जैसे हम कई बार किसी को कहते हैं, आप जैसे हमने 3600 देखे हुए हैं, उसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली 3600 देखे हुए हैं, वो एक बात करने का ढंग है, एक अंदाज है बात करने का। तो भगवान ने ये कहा, यहां पर इशारा कहीं और कर रहे हैं, और वो इशारा ये है कि तू धर्म के फल को छोड़ दे, क्योंकि धर्म के फल को पकड़ के बैठ जाएगा ना अगर तू, तो फिर तेरा अगला स्टेप जो मुक्ति का नहीं आएगा। देखिए ये बड़ी अच्छी प्यारी बात है जो हमने किसी किताब में नहीं पढ़ी, और हो सकता हम गलत हों। हमारी इंटरप्रिटेशन इस चीज की ये है कि भगवान कह रहे हैं कि ये जो धर्म और अधर्म की बातें हैं ना, ये मन के लेवल की बातें हैं, और मैं तुम्हें आत्मज्ञान की बात कर रहा हूं, भगवान कह रहे हैं। इसलिए ये स्टेप है, इस पर आप कदम रख के आगे आ जाओ, ये कह रहे हैं। छोड़ना नहीं है धर्म को बिल्कुल नहीं छोड़ना। ज्ञानी पुरुष कभी भी अधार्मिक नहीं हो सकता, ये आप लिख लीजिए। अगर कोई व्यक्ति अधार्मिक है तो इसका मतलब ज्ञान अभी नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो पूरी तरह फलित नहीं हुआ। तो ये तो एक बिल्कुल कंट्राडिक्टरी बात हो जाएगी ना धर्म को छोड़ने की। तो धर्म तो छोड़ने का चॉइस ही नहीं है, मगर छोड़ना क्या है, ये जो है ना कि मैंने धर्म किया है उसको छोड़ना है। ये करने का धर्म, ये मैं धर्म करता हूं। मैं आपको एक बड़ी प्यारी स्टोरी आज सुनाता हूं। हमारे एक बड़े धुरंधर विद्वान हुए हैं साउथ इंडिया में, वो इन 6th सेंचुरी एडी में ही वेंट टू जापान। उनका नाम बोधिधर्मा था, उनको बोधिधर्मा के नाम से जाना जाता। उनकी खूबसूरती ये थी, खूबसूरती उनकी आप पूछेंगे जी उनकी क्या वजह शोहरत क्या थी। आजकल हर चीज की वजह शोहरत पूछते हैं, इंटरनेट का जमाना है और सोशल मीडिया पर आपकी वजह शोहरत क्या है। उनकी वजह शोहरत ये थी, व्हेन ही वेंट टू जापान, उससे पहले वो चाइना गए। तो चाइना में जब वो गए, ही वॉज लुकिंग एट द वॉल, ही वॉज ऑलवेज वॉल फेसिंग, पीछे मुड़ के देखते ही नहीं थे। किसी ने पूछा कि व्हाई आर यू ऑलवेज फेसिंग द वॉल, पीछे मुड़ के क्यों नहीं देखते कौन खड़ा है। कहता आई हैव नॉट फाउंड ए सिंगल ह्यूमन बीइंग, कि मैं टर्न करके देखूं। जब मुझे कोई एक इंसान मिल जाएगा तो मैं मुड़ के देख लूंगा। अभी मैं दीवार की ओर देखना ज्यादा अच्छा समझता हूं इंसानों की तरफ देखने के बजाय। देखिए उनकी अवस्था क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं किसी को बुरा, ना 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 ना, ऐसा चक्कर नहीं है। संतों का ये मकसद नहीं होता खंडन मंडन करना, वो हमें शिक्षा दे रहे हैं। तो उस वहां का जो राजा था, द किंग वू, उसको पता लगा कि कोई हिंदुस्तान से जो है, उस वक्त हमारी ख्याति ये थी कि जितनी स्पिरिचुअल नॉलेज है वो इंडिया में है। आज भी ऐसा ही है आज भी ऐसा ही है।
हमने कुछ और मान्यताएं बना ली हैं, हमारा कोई एक और तरह का सेकुलरिज्म और उसका नैरेटिव चेंज कर दिया गया है। आज भी अगर किसी व्यक्ति को सही अध्यात्मिक विद्या, अब बताइए स्टीव जॉब आपके जो थे, उनको हिंदुस्तान क्यों आना पड़ा 19-20 साल की उम्र में? क्योंकि उनको बताया गया था, वो उनकी ग्राउंडिंग है। स्टीव जॉब जो बने वो भगवत गीता को पढ़कर बने, उन्हें लिखा हुआ है, आप पढ़िए उनकी बातें। उन्होंने जो किताब दी अपने मरने, ऑन हिज फ्यूनरल ही हैड 300 पीपल इनवाइटेड, बड़ा सारा ऑर्केस्ट्रेट किया हुआ था, प्लान किया हुआ था। जो किताब उन्होंने, सब लोग जो उनकी फ्यूनरल सेरेमनी अटेंड करने आए, ये लिख कर गए थे, वो लिखकर, और उन्होंने अपने iPad 2 पर सिर्फ एक किताब PDF डाउनलोड की थी, सिर्फ एक किताब। हम बताएंगे वो कौन सी किताब है, आपको लगेगा कि भारत की संस्कृति कितनी अच्छी है। मगर हमें स्टीव जॉब की एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, हमें तो पता है संस्कृति बहुत ऊंची है। मगर क्योंकि कुछ लोग जो है वो बड़े बड़े जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी एग्जांपल लेके शायद किसी तरीके से मान जाएं, तो हम उसकी एग्जांपल भी आपको दे देते हैं। हमारा कोई और मकसद नहीं है, यहाँ पर स्टीव जॉब की महिमा करने का मकसद नहीं है, यहाँ महिमा उस किताब की करेंगे जिसकी बात स्टीव जॉब ने की थी, और वो हर साल पढ़ते थे, उसे डाउनलोड किया होता, सिर्फ एक किताब को। ये बड़ी ध्यान की बात सुनने वाली है। स्टीव जॉब ओनली हैड वन बुक डाउनलोडेड ऑन हिज iPad 2। तो वो किताब कौन सी थी? वो थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। वो जो आपके हमारे हुए हैं योगानंद जी जो विवेकानंद जी पहले गए 1893, उसके बाद इन द अर्ली 20th सेंचुरी आपके जो बड़े प्यारे संत थे, जिनको विवेकानंद जी ने कहा था कि राम उठो, वेदांत का उद्घोष करो, राम तीर्थ, स्वामी राम तीर्थ, उनके बाद वो गए। उसके बाद कुछ और संत भी गए होंगे, मगर जो ख्याति प्राप्त संत थे वो योगानंद जी, स्वामी योगानंद जी, जो क्रिया योग वाले हैं और बहुत ही उच्च कोटि के योगी थे, उच्च कोटि के योगी थे। शब्द नहीं है हमारे पास, वो किस लेवल के योगी थे। उनका शरीर मृतक, यहाँ पर एक जगह है लॉस एंजलिस में, फॉरेस्ट लॉन, वहां पर 7 दिन पड़ा रहा था, शरीर में बदबू नहीं आई थी, और बाकी सारे फंक्शन चलते रहे थे। इस तरह के योगी थे वो, उस लेवल के योगी थे वो। तो उनकी किताब, उनकी जो जीवनी है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, दुनिया के इतिहास में स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफीज में सबसे उत्कृष्ट चीज वो है। अगर किसी व्यक्ति ने ये देखना है कि कोई व्यक्ति ब्रह्म ज्ञानी होकर भाव कैसे प्रकट कर सकता है अपने बारे में, तो मेरी नजर में ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, और वो किताब स्टीव जॉब ने उसकी एक कॉपी, जो 300 लोग उसके घर में फ्यूनरल पर उसके आए थे, ये इंस्ट्रक्शन दी थी, बैग में जा उनको डाल के दी जाए और कहा जाए अपने घर जाकर उसको खोलें। ये हमने एक आर्टिकल लिखा था, आप उसको चेक कर सकते हैं, सोर्सेज इसके चेक कर सकते हैं, मनगढ़ंत बातें नहीं है ये जो रिसर्च की हुई बातें हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि स्टीव जॉब क्या करने आया था हिंदुस्तान? वांटेड टू फाइंड एनलाइटनमेंट। जिसने भी, किसी ने, जब भी किसी के दिल में ये बात आई है कि मैंने अपने आप को जानना है, उसका मुंह इंडिया की तरफ हो जाता है। दैट पर्सन हैज टू कम हियर। इसके अलावा चारा ही कोई नहीं है, कोई अन्य मार्ग ही नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे देशों में लोग ऐसे नहीं हुए, मगर हमारे देश के जो संत लोग हैं उन्होंने तो भगवान की नाभि तक हाथ लगा दिया, यहां तक पहुंच गए हैं वो, इसलिए उनको नमन है। तो वो पता लगा उस किंग वू को, तो स्टोरी पूरी करें। व्हेन किंग वू फ्रॉम चाइना फाउंड आउट कि बोधिधर्मा ए ब्राह्मण फ्रॉम साउथ इंडिया हैज कम, और वो शिक्षा देने के लिए, तो वो उसको मिलने गए, और बोधिधर्मा वाज फेसिंग द वॉल, और पीछे डिक्लेयर किया गया कि मिस्टर वू, किंग वू हैज कम। उसने फिर भी मुंह नहीं मोड़ा, पीछे नहीं देखा उन्होंने। तो किंग वू वांटेड टू एस्टैब्लिश कि मैंने ये काम किए। ही सेड I made some hospitals, I made so many roads, I did all these good dharmic activities. What is इसका सारा फल क्या है? What is the glory of all these things? Bodhidharma answered without looking back. He said nothing. क्योंकि बोधिधर्मा के दिल में ये था, इन्होंने ये अच्छे काम किए हैं, मगर मान कर रहे हैं अच्छे काम किए हैं, उसका फल 0 है।
गुरबानी कहती है दान करके, अच्छे काम करके उसको याद किया, जताया, वो तो हाथी को स्नान करने वाली बात है, मिट्टी बाद में डाल लेगा, कुंचन स्नान, उसका फर्क ही कोई नहीं पड़ेगा, फर्क कोई नहीं पड़ेगा, ऐसे गुरबानी कहती है। तो बोधिधर्मा सेड टू किंग बू, ही सेड नथिंग। कहता देन हु इज, एंड देन ही सेड सो व्हाट इज द रियल धर्मा, एंड ही सेड वास्ट एम्प्टीनेस, पूरे खाली हो जाओ, पूरी तरह खाली हो जाओ। ये भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, सर्वधर्मान परित्यज्य। ये जो है कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैंने वो पा लिया है, मैंने वहां गए, हम वहां किया, सब कुछ छोड़ के तू उस परम तत्व की शरण में आ जा। और जब तू आ जाएगा फिर क्या होगा, फिर जो है वो मैं सबसे मुक्त कर दूंगा तुम्हें। आई विल मेक यू फ्री फ्रॉम ऑल वरीज, सबसे दूर हो जाएंगे, सब भय शोक खत्म हो जाएगा आपका। ये आश्वासन देके उसको कहा। तो यहां पर धर्म को नहीं छोड़ना, जो धर्म का आश्रय है, जो धर्म को आपने बैसाखी बना लिया है, उसको छोड़ना है। और वो धर्म करके उसका जो चिंतन आप करते हैं, जैसे प्रोफेसर वू, मिस्टर वू कर रहा था, तो बोधिधर्मा सेड there is no merit. What is my merit? Spiritual? He said nothing. And then he asked, what is real dharma? He said vast emptiness. And then he asked, who is the person who is answering my questions? He said, I don't know. I don't know. वो कहता ये जवाब कौन दे रहा है, अगर vast emptiness है धर्म और तुम कह रहे हो vast, who is this person? He said, I don't know. की जाना मैं कौन, बुलिया की जाना मैं कौन। बुल्ला कह रहा है कि मैनू की पता, हाउ डू आई नो हु आई एम। बस यही है सारा काम। सो सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब है, और एक और समझिए बात, ब्रीक बात जो वो ये है, एक तो धर्म का आश्रय छोड़ो, धर्म ना छोड़ो, कर्म नहीं छोड़ना। कर्म का जो आसक्ति है, फल है, मैं कर्तापन छोड़ना है, धर्म नहीं छोड़ना। धर्म के बारे में कर्तापन छोड़ना, धर्म का अभिमान छोड़ना है। क्यों? दूसरी चीजों का अभिमान तो आप छोड़ सकते हैं, मगर धर्म का अभिमान छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो भगवान को पता था कि अर्जुन को कहीं ऐसा ना हो जाए, चूक जाए, तो भगवान तो एक दयावान है, वो उसको पूरी अंत तक ले जाना चाहते हैं। और 4 पुरुषार्थ हैं, तो उनकी बात भी हो जाए। हमारी जो स्पिरिचुअल फिलॉसफी है इंडिया की, उसकी खूबसूरती आज आपको थोड़ी सी बताएंगे, और फिर कठोपनिषद की कथा वो पूरी करके नचिकेता की तो बात पूरी करेंगे आज उस पर। तो 4 पुरुषार्थ हैं जो भी दुनिया में, एनी पर्सन यू कैन ओनली डिजायर 4 थिंग्स, 4 टाइप्स ऑफ थिंग्स। नंबर 1 वेल्थ एंड द सिक्योरिटी विच कम्स विद वेल्थ। इससे अर्थ कहते हैं इन दी हमारी जो सनातन धर्म की वेद की लैंग्वेज है, उसमें से अर्थ कहा है। अब अर्थ का मतलब एक मीनिंग भी होता है, अर्थ का एक मीनिंग भी होता है, मगर यहां अर्थ का मतलब जैसे अर्थशास्त्र होता है ना, वैसे अर्थ का मतलब है ऑल सीकिंग ऑफ वेल्थ एंड द सिक्योरिटी विच कम्स विद वेल्थ इज अंडर दिस डिपार्टमेंट। इस विभाग में अर्थ के आ जाएगी। हम सब वो चाहते हैं। सेकंड चीज हम जो सब चाहते हैं वो है, उसे हम उसको संतों ने काम कहा है। यहां पर काम का मतलब कामना है, all the desires we have। और खास करके डिजायर किस चीज की है? आनंद की। बस मेरे मन की बात पूरी हो जाए, मैं जो चाहूं मुझे मिल जाए। ये जो कामना है, ये जो मन की कामना है, उसे काम कहते हैं। और जहां तक कामना है वहां तक संसार है। संत जनों ने ये कहा है, जहां तक कामना वहां तक संसार। कामना खत्म हुई, संसार खत्म हो गया। तो ये दूसरा पुरुषार्थ ये है, इसके लिए सब लगे हुए हैं दिन रात। बच्चा पैदा होता है, उसको अच्छा नहीं लगता, आंखें नहीं खोलना चाहता, क्योंकि रोशनी उसको हर्ट कर रही है। सो उस वक्त भी वो प्लेजर सीख कर रहा है। फ्रॉइड की एक और डेफिनेशन थी, वहां हम नहीं जाना चाहते, मगर ये एक स्वाभाविक है कि हम प्लेजर सीख करते हैं। हम ही नहीं, जानवर भी ऐसे करते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो प्राणी है, वो दुख नहीं चाहता है। क्या हमारे एक शायद मनुस्मृति में आता है कि सुखमा सारे प्राणी जो है वो सुख में सर्वदा भूयात,
सब सुख चाहते हैं। दुख मां भूत कथा जना, वो कभी भी दुख नहीं चाहते। सुख में सर्वदा भूयात दुख मां भूत कदाचना इति इच्छा सर्व सामान्य, ये सबकी इच्छा है। क्या? मुझे सुख मिले, मुझे दुख कभी ना मिले। अब ये नहीं कि आपका धर्म कौन सा है, आप कब पैदा हुए थे, बच्चे हैं, छोटे हैं, बूढ़े, सब पर ये लागू यकसा, ये सार्वत्रिक धर्म है, ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन है इसकी। क्या? सुख में सर्वदा भूया, मैं हमेशा सुख चाहता हूं, दुख मां कभी ना हो, भूत कदाचन, मुझे कभी ना हो दुख। इति इच्छा सर्व सामान्य, सबकी ये इच्छा है, मगर पूरी कैसे होती? ज्ञानादेव केवल पूर्ण, इसका पूर्णता जो है सिद्ध थे। ज्ञानादेव ज्ञानाद एव केवल सिद्ध है था, इसकी सिद्धि जो है वो सिर्फ ज्ञान से होती। किसकी? हम सब सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते, मगर सुख और दुख का जो चक्कर है, इससे निकलने के लिए इसका जो दवाई है, इसकी जो औषधि है, द क्योर ऑल फॉर दिस इज ज्ञान। और इसीलिए ये जो सीरीज है, शर्मा जी के सौजन्य से इन्होंने हमें ये मौका दिया। मैंने तो उनको कहा है कि मैं तो स्टूडेंट भी नहीं हूं, मैं तो काम चलाऊ आप मुझे कह सकते हैं कि ये काम चलाऊ हैं स्टूडेंट सीकर भी पूरी तरह से नहीं हूं, मगर इन्होंने, इनका प्यार है, ये आग्रह करते हैं, तो उसके लिए मुझे खुद पढ़कर, खुद देखकर सारी चीजों को और बड़े ध्यान से प्रभु से माफी मांगकर ये मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये ऐसी ही मेरी भावना है, ये मैं कोई बड़ा चढ़ा कर बात नहीं कर रहा। तो ये जो सुख मां भूयात सर्वदा दुख मां भूत कदाचन इति इच्छा सर्व सामान्य ज्ञानाद केवल सिद्धता, ये ज्ञान से सिद्ध होती है। और ये जो सीरीज है ना, ये उसके लिए कि उस ज्ञान को हमें पता लग जाए, जिससे हम ये जो कभी खुशी कभी गम का जीवन है, इससे मुक्त हो जाएं। फिल्मों तक तो बात ठीक है, ये ताड़ियां मारने के लिए बात ठीक है, मगर चाहता कौन है? हम कभी खुशी नहीं चाहते, हम हमेशा खुशी चाहते हैं। हम कभी गम नहीं चाहते, हम कभी भी गम नहीं चाहते। तो क्या एक ऐसी विद्या है? हमारे संत कहते हैं बिल्कुल है। और क्या हमने कोई ऐसे लोग देखे? बिल्कुल देखे। इन कानों ने सुना है उनको और इन आंखों ने देखा भी है। तो ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है, ऐसे लोग अब भी हैं जिन्होंने वो शाश्वत पद प्राप्त किया है, निर्भय पद प्राप्त किया है। आज मैं कुछ इसलिए भी ज्यादा खुश हूं कि हमारे जो टीचर हैं वहां ऋषिकेश वाले, स्वामी ब्रह्म आत्मानंद सरस्वती जी, उनकी मुझे चिट्ठी आई है। वो साल में एक बार चिट्ठी लिखते हैं, गुरु पूर्णिमा के। आज शायद कोरोना की तरफ से कारण वो लेट हो गई। तो उन्होंने उस चिट्ठी में, मैं आपको आशीर्वाद उनका बताता हूँ। ये चिट्ठी है उनकी, ये आज ही आई तो ये हमारे लिए तो ये एक सबसे बड़ा इकरारनामा है। वो गुरु जो होते हैं ना, जो सही गुरु हैं, उनका आशीर्वाद क्या होता है, मैं सिर्फ उसके लिए आपको शेयर कर रहा हूं, और कोई मकसद नहीं मेरा। उन्होंने लिखा है, आपकी वृत्ति भक्ति भाव से अपने स्वरूप में लगी रहे, बस, बाकी कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी वृत्ति भक्ति भाव से अपने स्वरूप में लगी रहे, ये आशीर्वाद उन्होंने दिया है। और यही आशीर्वाद है जो देने लायक है और मांगने लायक है। बाकी चीजें सब आनी जानी है। जो दिसे सो चलनहार, गुरबानी कहती है, जो भी नजर आ रहा है वो आने जाने वाला है। उसको लेने से क्या बनेगा? कितनी देर तक वो हमारे साथ रहेगा? और ये भी कहा है, क्या मांगू कुछ थिर नहीं। भगवान से कह रहा है भगत, मैं आपसे क्या मांगू, कोई भी चीज स्थिर रहने वाली नहीं। मैं मांगू तो उसको। और फिर ये भी कहा कि बिन बोलियां सब कुछ जानदा, बिन बोलियां, बगैर बोले हुए वो सब कुछ जानता है, क्योंकि अंदर बैठा हुआ है देखिए, आदमी मुंह से कुछ मांग रहा है, अंदर डिजायर कुछ और है। मुंह से कह रहा है भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें विरक्त कर दो, वैराग्य कर दो, अंदर है मेरी एक फैक्ट्री और लग जाए। अब भगवान तो अंदर बैठे हुए हैं, वो अंदर वाली बात सुनते हैं उनको बाहर वाली बात, वो कहते हैं यार
ये मांग तो कुछ और रहा है, मंदिर में जाकर त्याग कह रहा है, मगर अंदर इसकी लालसा वो है, वो देते हैं इसके। तो जो मांगे साहिब अपने से, सोई सोई देवे, नानक दास मुख ते जो बोले, इया उआ सत होवे। तो ये संत वो हैं जिनकी बात यहाँ और वहां दोनों सत्य होती। तो मैंने इसलिए आपके साथ, तो मेरी आज खुशी का जो अनंत खुशी का जो मेरा आज है एक सब ये भी है कि हमें अपने गुरुदेव की ये प्यारा सा एक उनका प्रेम भरा संदेशा आया है। तो ये धर्मान परित्यज्य नहीं है अधिकारी जी, ये धर्म पर जो आश्रय है हमारा और धर्म के बदले में जो हम चाहते हैं, तो एक पुरुषार्थ क्या है? अर्थ। सब चाहते हैं। कोई आदमी मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा जो गरीब बनना चाहता हो। अगर कोई आपको मिल जाए तो हमें मिला दीजिए, उस पर एक किताब लिखेंगे हम। इच्छा है हमारी अगली किताब उस पर आए। कोई आदमी अंदर से गरीब नहीं होना चाहता। आम आदमी की बात कर रहे हैं। और कोई आदमी भी ये नहीं चाहता कि उसको आनंद ना मिले, उसको दुख मिले। तो पहला अर्थ, दूसरा काम, तीसरा धर्म। तीसरा पुरुषार्थ है धर्म। धर्म क्या है? धर्म है राइटियसनेस, कि जो जो ठीक काम है क्या है। और ठीक काम क्या है उसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। उसके लिए आपको पीएचडी करने की जरूरत नहीं है एथिक्स पर। एक 5 साल के बच्चे को भी पता है धर्म की डेफिनेशन क्या है, और वो ये है, किसी का दिल ना दुखाओ। यही महाभारत के लिखने के बाद वेद व्यास जी को पूछा गया कि 1,00,000 श्लोक कौन याद करेगा, तो आप हमें उसका एग्जैक्टिव समरी एक श्लोक में दे दीजिए। और संतों की खूबसूरती ये है, वो कहते एक छोड़ो, हम आधे श्लोक में दे देते हैं आपको। अर्ध श्लोकेन प्रवक्ष्यामि यतुक्तम ग्रंथ कोटि भी। क्या? कि जो दूसरों को पीड़ा देना है, परोपकार पुण्य आए। दूसरों का उपकार करने के बराबर कोई पुण्य नहीं है। पापाय पर पीड़नम, और दूसरों के पीड़ा देने के, दूसरों को हर्ट करने के बराबर कोई दूसरा पाप नहीं। तो हर्ट नहीं करना, सिंपल डेफिनेशन है। किसी को थॉट से, वचन से और कर्म से, हाथ से हर्ट नहीं करना। हाथ से हर्ट करना सबसे निम्न श्रेणी का, उससे आप परहेज कर सकते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि कोई आपका हाथ पकड़ सकता है। वचन से थोड़ा सा और मुश्किल है। वचन से किसी का बुरा ना करना, क्योंकि वो कहते हैं कि मारने वाले को तो हाथ पकड़ लेंगे, बोलने वाले का मुंह थोड़ा पकड़ लेंगे आप। तो बोलने से परहेज करना किसी को हर्ट करने से और मुश्किल है। और जो सबसे मुश्किल बात है, जो हमने स्वामी शरणानंद जी महाराज जी और स्वामी राम सुखदास जी महाराज से सुनी और सीखी, और वो ये थी कि कभी भी किसी के बारे में बुरा विचार नहीं करना कि उसका बुरा हो जाए, वो आदमी बुरा है। किसी को बुरा नहीं समझना। किसी को बुरा समझने से इससे बड़ा कोई पाप नहीं। किसी को बुरा नहीं समझना। दूसरों का भला करने से तो दूसरों का भला होता है, मगर दूसरों को बुरा ना समझने से सारी दुनिया का भला होता है। ऐसे स्वामी शरणानंद जी कहा करते थे अपनी वाणी में। तो ये ख्याल रखना है कि मनसा, वाचा और हाथों से किसी का अहित ना हो जाए। जागते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी का अपकार ना हो जाए। ये राम सुखदास जी की वाणी है। तो ये धर्म की डेफिनेशन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि धर्म तीसरे नंबर पर है? नहीं, बोलने में तो ऐसे आता है, काम अर्थ धर्म मोक्ष। मोक्ष हमेशा फोर्थ है, मगर करना क्या है? धर्म को तीसरी जगह से उठाकर पहली जगह ले आना है। जैसे वो अलजेब्रे में ब्रैकेट होती है, ब्रैकेट के बाहर धर्म को निकाल लो और अर्थ और जो काम है वो धर्म युक्त करो। हमारे शास्त्रों में पैसा कमाने के बारे में कोई निषेध नहीं है। अधार्मिक तौर पर कमाने के बारे में निषेध है। अपनी प्लेजर का संपादन करना है, उसके बारे में कोई निषेध नहीं है, मगर अपनी प्लेजर का धर्म युक्त तरीके से अपनी जो हमारी खुशी है उसका संपादन करना है। तो जब आप धर्म को पहले ले आएंगे तो अर्थ और काम आपका सुर में हो जाएगा।
दुनिया में शर्मा जी सारी प्रॉब्लम्स दो कारणों से हैं, ये आज मूल बात है। ओनली टू रीजंस व्हाई ऑल प्रॉब्लम्स आर देयर। नंबर वन, लोग बेसुरे हैं। नंबर टू, लोग बेताले हैं। दे आर आउट ऑफ ट्यून एंड दे आर आउट ऑफ बीट। और जो लोग संगीत को समझते हैं, भारतीय शास्त्रीय संगीत को, वो इसको ज्यादा अप्रिशिएट कर सकते हैं कि आउट ऑफ बीट का मतलब क्या है और बेसुरा व्यक्ति कौन है। तो जो लोग कोई बुरे काम कर रहे हैं वो बेसुरे हैं। इन द लैंग्वेज ऑफ म्यूजिक, वो उनको सुर छूट गया है, उनका बस सुर नहीं रहा, बेसुरे हो गए। और जो गायक है उसको पता लग जाता है कोई कोई आदमी बेसुरा गा रहा है, वो हाथ जोड़ देता है, वो कहता है ऐसा नर्त ना कीजिए हुजूर। हमने हमने एक बार गाया, हमें 2 गोल्ड मेडल मिले। एक शुरू करने के लिए, वो छोटा था, एक बड़ा मिला बंद करने के लिए। तो ऐसा भी हो जाता है कई बार, मेडल मोडल मिलते रहते हैं कई अलग अलग कामों से। छोटा था, इन्होंने शुरू किया गाना, बड़ा हो कहते बंद करो हुजूर, ये आपका बेडार राग कहां से शुरू हो गया। तो बिकॉज पीपल आर आउट ऑफ ट्यून, दे आर नॉट हार्मोनियस। उनकी जो इच्छाएं हैं वो हार्मोनाइज नहीं है। प्लेटो अपनी किताब रिपब्लिक में कहता है, सोल की डेफिनेशन देता है वो सेल्फ की, कि हमारे सोल के 3 हिस्से होते हैं, एक इंटेलेक्चुअल, एक डिजायरिंग और एक एपिटाइटिव, जिसमें करेज रहता है। वो उनका जो सही अनुपात है, ये वही चीजें हैं हमारे यहाँ से ली हुई हैं, वो अपने साथ नहीं लेके आए थे, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान से लोग वहां जा रहे थे ग्रीस में। तो सुकरात ने कुछ लोगों को सुना होगा, जैसे हमारे वो 3 राजस, तमस और सात्विक गुण होते हैं, उसके हिसाब से वही चीज प्लेटो कह रहा है। थोड़ा सा उसको इंग्लिश का जामा पहना दिया, इंग्लिश लैंग्वेज की चोला डाल दिया है, मगर बातें वही हैं, यहां से गई हुई हैं, यहां से बाहर नहीं गई, दूर कोई चीज नहीं। तो धर्म जो है वो तीसरा चरण है, मगर वो पहला होना चाहिए। तो अब आप ये कहेंगे कि 3 जो काम है ना, अर्थ, कर्म और धर्म, इनसे जो फल मिलता है ना शर्मा जी, वो नाशवान होता है। ये समझने वाली बात, इसलिए मैंने ये सारा भूमिका बनाई है कि हमें ये समझ आ जाए कि इन तीनों चीजों का जो आपको फल मिलेगा, जो आप मेहनत करते हैं, पैसा आ गया, आपने मेहनत किया, आपकी जिंदगी आरामदायक हो गई, आनंद आ गया आपको जिंदगी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये टिकाऊ नहीं रहेगी। धर्म का, और धर्म का भी ऐसे ही है, कभी उसका फायदा हो गया, कभी नहीं हुआ। कभी आपने किसी वक्त भी आदमी कोई ना जाने कौन कहाँ रास्ता बदल जाए, ठीक है ना। मोहब्बतों में अजब है दिलों को धड़का सा, मोहब्बतों में अजब है दिलों को धड़का सा, ना जाने कौन कहाँ रास्ता बदल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए, अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए। तो ये भी एक अंदाज है शायरों का बात करने की बात है ये, कि कहां भी कोई धर्म का भी रास्ता, कोई व्यक्ति, पता नहीं बुद्धि कब विनाश काल विपरीत बुद्धि हो जाए किसी की, तो मगर वो जो धर्म का फल भी है ना, लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड नहीं है। क्योंकि जो भी चीज आप करेंगे ना, वो पहले नहीं थी, और जो चीज पहले ना हो, थोड़ी देर में हो, उसको कालांतर में खत्म हो जाएगी। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को ये यहां धर्म का छोड़ने का मतलब ये है कि अगर तू धर्म में अटक गया, अगर तू धार्मिक बन गया, सो कॉल्ड धार्मिक व्यक्ति, तो मुश्किल हो जाएगी मेरे दोस्त, फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। देखिए, मील पत्थर क्या होता है? मील पत्थर बताता है कि मंजिल कितनी दूर है। अगर आपने मील पत्थर को जफ्फी डाल ली, पड़ के बैठ गए उसको पकड़कर, तो फिर मंजिल मकसूद से दूर हो जाएंगे। भगवान ये बता रहे हैं अर्जुन को कि धर्म को पकड़ के ना बैठ जाना। पकड़ने मतलब इसके फल में आसक्ति नहीं होनी चाहिए तेरी। हमें ये सुनने का मौका मिला संतों से कि जो भी अच्छा काम करो, जो भी जप तप करो आप, अंत में उसका फल सबको दे दो। ये जो भी आपने किया, कई लोग 1 लाख बार मंत्र कर लेंगे, मंत्र सिद्ध कर लिया। कोई लोगों ने बड़ी तपस्या की, कई लोगों ने बड़े धार्मिक कार्य किए, जैसे वो किंग वू था, उसने बड़े धार्मिक कार्य किए, मगर उसने ये कहा मैंने किए, बस वो नहीं कहना। तो आप अंत में एक मनोवृत्ति बना लीजिए, जो भी पाठ करते हैं, जो भी करते हैं, उसके अंत में ये कह दीजिए प्रभु को कि इसका फल जो है
वो सबको दे दो, तो वो उससे मुक्त हो जाएंगे आप, क्योंकि फिर फल से आप बंधेंगे नहीं, नहीं तो हर कर्म का फल होता है। भगवान क्यों कह रहे हैं अर्जुन को कि फल का त्याग कर? आप कहेंगे जी फल के बगैर तो हम कोई वी कैन नॉट डू एनी एक्शन विदाउट फल, फल तो करना पड़ेगा, फल तो छोड़ सकते ही नहीं है। पहली बात तो फल हमारे हाथ में है ही नहीं। वहां मतलब ये है कि अगर आप फल के साथ जुड़ जाएंगे तो फल को भोगने के लिए, चाहे अच्छा है बुरा, आपको फिर आना पड़ेगा या आपको होना पड़ेगा। तो मुक्ति नहीं, अंतिम चरण नहीं है वो एक पड़ाव है। चुप रह के भी कर सकते हो दुनिया की रहनुमाई, चुप रह के भी कर सकते हो दुनिया की रहनुमाई, क्या तुमने कभी नील का पत्थर नहीं देखा? कि चुप करके भी लोगों को रास्ता दिखा सकते हो। शायर कह रहा है, देखिए शायर की सोच देखिए कितनी प्यारी है, ऑब्जर्वेशन देखिए शायर की, कि चुप करके भी कर सकते हो दुनिया की रहनुमाई, उनको रास्ता दिखा सकते हो, क्या तुमने कभी मील का पत्थर नहीं देखा? तो अर्जुन को भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि धर्म को पकड़ के ना बैठ जाओ, धर्म धर्म की गठड़ी जो आपने सर पर रखी हुई है उसको उतार के रख दो। सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब ये है और इतना ही है। धर्म को नहीं छोड़ना, धर्मात्मा पने को छोड़ना है कि मैं धर्मात्मा बन गया हूं, वो छोड़ना है। क्योंकि ये बातें कहने वाली नहीं होती। एक बहुत ही विलक्षण उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद, मांडुक्य 12 मंत्र हैं, उस पर एक बहुत ही धुरंधर वेदांतिन हुए हैं गौड़पदचारी। शंकराचार्य जी का तो कोई जवाब ही नहीं है। ऐसा फिलोसोफर दुनिया में ना कभी पहले हुआ है, ना ही कभी बाद में होगा। अब भगवान ही पैदा कर दें तो कोई और बात है, वो तो सर्वसमर्थ हैं, मगर लगता नहीं कि उस रिपीट करेंगे ऐसी चीज को। 5-10 हजार साल के लिए काफी है शंकराचार्य जी। अगर कोई और व्यक्ति है जो उस लेवल के हैं, बल्कि शायद कुछ कदम आगे ही हैं, वो हैं शंकराचार्य जी के गुरु, उनके परम गुरु गौड़पदचार्य जी। तो गौड़पदचार्य जी ने उन मंत्रों पर एक कारिका लिखी है, कारिका, गौड़पद कारिका, और फिर शंकराचार्य जी ने उन पर कमेंट्री की। देखिए ये है हमारी सभ्यता की खूबसूरती, कमेंट्री पर कमेंट्री है। कारिका बहुत खूबसूरत है, उसके 4 भाग हैं, उसमें सारा अद्वैत है दुनिया का। इससे बड़ा अद्वैत का ग्रंथ दुनिया में कोई दूसरा नहीं है गौड़पदचार्य की, गौड़पद आचार्य जी की गौड़पद कारिका। उसमें एक मंत्र आता है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। वो धर्मान परित्यज्य वाली बात ही है, मगर किसी और ढंग से कही है। वो कहते हैं अद्वैतम सम अनुप्राप्य, कि अद्वैत जो है, अद्वैत कि देयर इज ओनली वन रियलिटी विदाउट ए सेकंड, और वो मेरा अपना आपा है, ये ज्ञान प्राप्त करके अच्छी तरह, सम अनुप्राप्य, सम मैंने बड़े अच्छी तरह से, बड़े प्यार से, बड़े विधि पूर्वक ये ज्ञान प्राप्त करके जड़वत लोकम आचरित, लोगों में जड़वत बने रहो, बस इग्नोरेंट बने रहो। अब इसका मतलब ये है, इसके कई मतलब हैं। एक मतलब इसका ये भी है कि ज्यादा ना उजागर करो अपनी स्पिरिचुअल कैपिटल जो है उसको, जड़वत लोकम आचरित, पहले वो प्राप्त कर लीजिए ज्ञान जो करना है, फिर लोगों में आम बने रहिए, क्योंकि ये ज्ञान ऐसा है, इसमें कोई खास बात नहीं है इसमें कोई ये आपने तीर नहीं मार दिया, अपने आप को जाना है, बस इतना ही है। वो जितने जितने अपने आप को जानते जाएंगे उतना उतना आम बनते जाएंगे। जेन में एक जेन है, उसका फॉर्म है रेंजाई जेन। उसमें जो हाईएस्ट रैंक है, काफी रैंक है, वो जो अलग अलग भूमिकाएं हैं, जैसे योग विशिष्ट में 7 भूमिकाएं हैं, तो उनके भी ज्ञान की कई भूमिकाएं हैं। जो हाईएस्ट भूमिका है ना, तो उसका नाम है ए मैन ऑफ नो रैंक मतलब कि कोई रैंक ही नहीं है आपका कोई रैंक ही नहीं है, क्योंकि रैंक तो मन के हैं, बुद्धि के हैं। तो सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब है कि लोगों में जड़वत बने रहो,
धर्म का जैसे जैसे भगवान बुद्ध ने कहा कि जो नौका है, पैराबल ऑफ द राफ्ट, जो नौका है, द नौका, द the boat has carried you from one shore to the other, दूसरे किनारे पर पहुंचकर वहीं उसको छोड़ दो, लीव द बोट ऑन द अदर शोर। ये नहीं है कि अपने कंधे पर बोट को उठाते फिरो उधर जाकर। वो धर्म को छोड़ने की बात इस तरह से करी है। वो धर्म की नौका जो है उसको भी छोड़ना पड़ता है। और भगवान बुद्ध एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, वो मुझे अभी याद आई है, बात अंदर से पता, मतलब कि पढ़ी पढ़ाई पुरानी बातें हैं, मगर अब एकदम से याद आई है तो मैं शेयर करता हूं आपके साथ। वो ये कहते हैं कि धर्म जो है वो एक नौका है, इट्स ए बोट टू कैरी यू फ्रॉम दिस शोर ऑफ संसारा टू द अदर शोर ऑफ निर्वाणा। मगर उसको उस शोर पर जाकर धर्म को छोड़ना पड़ता है। वहां एक प्रश्न करते हैं वो बड़ा प्यारा, तो वो प्रश्न से मैं मेल करूंगा इसका, सर्वधर्मान परित्यज्य का। वो प्रश्न करते हैं कि धर्म की नौका को वहां छोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप कंधे पर नहीं उठा सकते, उसको वहां छोड़ना पड़ेगा। अगर धर्म की नौका को छोड़ना पड़ता है तो अधर्म को कितना छोड़ना पड़ेगा बताइए आप। वो तो बिल्कुल ही त्याग करना पड़ेगा उसका। धर्म का भी त्याग करना चाहिए, करना पड़ेगा आपको। नौका को अपने, धर्म को अपने कंधों पर ना उठाकर घूमो कि हम धर्मात्मा हैं। भगवान का मकसद ये है, क्योंकि भगवान अर्जुन को चौथे पुरुषार्थ तक ले जाना चाहते हैं। वो है परम पुरुषार्थ, वो मोक्ष है, मुक्ति का पुरुषार्थ। वहां तक वो के धर्म पर ना अटको ना। सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब है कि जो धर्म की नौका है जिससे तुम पार लगे हो, उसके बगैर पार नहीं हो सकता। धर्म को नहीं छोड़ना। दूसरे शोर पर जाकर, दूसरे छोर पर जाकर फिर ये कि हम महात्मा हैं उसको छोड़ना है, महात्मा पने को छोड़ना है। वो खड़े कहते हैं गालिब, वो खड़े पूछते हैं गालिब कौन है, कोई बतलाओ हम बतलाएं क्या। वो तो दूसरों को डिसाइड करना है कि आप कितने धार्मिक हैं, आप थोड़ो कहेंगे। तो उस धर्म को छोड़ना है। मगर बात जो हो रही थी वो ये थी कि अर्थ, कर्म और धर्म तीनों पुरुषार्थों से जो बनेगा वो रहेगा नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो रहेगा नहीं तो क्या वो साधना करनी फजूल है, निष्फल है? तो संत जन कहते हैं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, साधना निष्फल नहीं है, कोई चीज रायगा नहीं जाती। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि एक कदम भी इसके तरफ उठा हुआ गलत, वो रायगा नहीं जाएगा, वेस्ट नहीं जाएगा, उसका कहीं ना कहीं लेखा जोखा मिल जाएगा आपको। तो अगर इन तीनों पुरुषार्थों से हमें जो मिला आज तक जिंदगी में वो नहीं रहेगा, नाशवान है, तो क्या इसको नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, मगर मनोवृत्ति चेंज करनी चाहिए। जब भी हम धर्म का, अर्थ का और काम का संपादन करें तो उसके फल को ना चाहें हम। अब ये आप कहेंगे भगवत गीता बार बार फल की बात क्यों करती है? इसलिए क्योंकि अगर आप फल से जुड़ जाएंगे तो बंध जाएंगे, उस मील पत्थर से बंध जाएंगे जो फिर मंजिल मकसूद तक आपको पहुंचने नहीं देगा। तो उसको जब आपने छोड़ना है, उसका परित्याग करना है, उसके फल का, तो परित्याग करने से क्या होगा? तो आप कहेंगे फिर हम काम क्यों करें? जब हमने फल नहीं लेना तो काम करने की जरूरत नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। काम नहीं छोड़ना, काम करना है, पूरा काम, बल्कि और दिल लगा के करना। भगवान कह रहे हैं जैसे एक कामी पुरुष, कामी मैंने जो उसको कुछ चाहिए, काम करने के बाद उसको मिलेगा कुछ, उसकी काम में इतना इंटरेस्ट होता है कि उसको कुछ मिलेगा, उतने ही ध्यान से, बल्कि उससे भी ज्यादा आप काम का जो फल है उसका त्याग करके उसमें लग कर काम, रत होकर काम कीजिए। ये है विडंबना। जो अगर आप नहीं करेंगे, हम कहते हैं हम करेंगे नहीं, तो फल को अगर आप छोड़ के करेंगे ना, काम करेंगे मेहनत से उससे भी ज्यादा, अब आप कहेंगे मुझे क्या मिलेगा? क्योंकि हमारा सबसे पहला प्रश्न होता है कि ये जो अध्यात्म से, ये जो विद्या से अध्यात्म विद्या का वेबिनार है, हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? तो वो मिलेगा क्या? भगवान कहते हैं, हमारे संत कहते हैं कि जब हम तीनों पुरुषार्थों को बगैर किसी उसके फल की इच्छा के करेंगे तो हमें मन की शुद्धि मिलेगी, मन की शुद्धि। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं 5वें अध्याय में, योगी ना कर्म कुरंते संग त्यागत्वा आत्मा शुद्धि। योगी जो योगी है
जो योग में योगास्थित होकर आत्मस्थित होकर काम करते हैं, वो क्यों करते हैं? संग त्यागत्वा, संग मैंने वो अटैच नहीं होते, फल को त्याग कर देते हैं। आत्मा शुद्धि, आत्मा की शुद्धि के लिए। अब आत्मा की शुद्धि तो होती नहीं है, वहां पर अर्थ आत्मा का मन से है, मन की शुद्धि के लिए। अब आप कहें जी हमने मन की शुद्धि को क्या करके लेके क्या करना है, उससे कौन सा रोटी पकेगी हमारी मन की शुद्धि से? तो उसका जवाब ये है कि जब किसी व्यक्ति के मन की शुद्धि होती है, उस शुद्ध मन में ज्ञान प्राप्त करने की, अध्यात्म विद्या प्राप्त करने की लालसा पैदा होती है। बस यही उसकी खूबसूरती यही है। संसार की कोई चीज रहेगी नहीं, मगर अगर आपने संसार की सेवा कर दी है बगैर किसी चीज की इच्छा के, और परित्याग कर दिया है फल का, कि आपकी चीज आपको छोड़ते हैं, तब वस्तु गोविंदा तुम्हें भी समर्पित, तुम्हें ही समर्पित करते हैं, फिर आपका मन शुद्ध हो जाएगा। उस शुद्ध मन में ज्ञान प्राप्ति की इच्छा भगवान पैदा कर देंगे, और फिर आप निकल जाएंगे, आप नचिकेता बन जाएंगे। इससे बड़ा और क्या चाहिए? इससे तो परम पुरुषार्थ कोई है ही नहीं है। मुक्ति की लालसा आप में हो जाएगी, वो प्रभु की इच्छा से होगी, और वो तब होगी जब हमारा अंदर का दिल साफ हो जाएगा। अगर दिल साफ नहीं होगा, प्योर नहीं होगा, तो ये विद्या मिल जाए आपको, घोल के पिला दे आपको कोई ऐसे कप में, फिर भी आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि अंदर शुद्ध नहीं है। इसको रखने के लिए शेरनी का जो दूध है, हमने देखा तो नहीं है, सुना है कि उसको रखने के लिए बर्तन जो है वो सोने का चाहिए। किसी और बर्तन में दूध रखो, खराब हो जाता है, वो बर्तन को भी खराब कर देता है, दूध तो खराब होते होता है। शेरनी का दूध इतना उत्तम माना गया है कि उसको रखने के लिए बर्तन भी उत्तम चाहिए। ये अध्यात्म विद्या इतनी उत्तम है, इसका बर्तन बहुत शुद्ध चाहिए। शुद्ध कब होता है बर्तन? जब इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, जब कुछ पाने की लालसा खत्म हो जाती है, जब कुछ बनने की मान मर्यादा प्रतिष्ठा ईश द्वेष सब खत्म हो जाता है। फिर अंदर आपका प्योर हो गया। मन ऐसो निर्मल भयो, कबीर साहब कहते हैं, मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। फिर भगवान, फिर मुक्ति ढूंढनी नहीं पड़ेगी, मुक्ति आपको ढूंढ लेगी। फिर मोक्ष आपको नहीं ढूंढना पड़ेगा, मोक्ष तो नित्य प्राप्त है। मोक्ष तो हमारी आत्मा का स्वरूप है। अगर नित्य प्राप्त है, उसको ये गुण साधन से नहीं होए, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। अब वो कृपा कैसे मिलती है? राम कृपा के तेहि अधिकारी, जिनको सत्संगति अति प्यारी। वो उसकी कृपा के अधिकारी होते हैं जब द्रवहि दीन दयाल राघव। तुलसीदास जी तो कमाल हैं, वो कहते हैं जब द्रवहि दीन दयाल राघव, जब भगवान कृष्ण, भगवान राम, उनका हृदय द्रवित हो जाता है आप पर, भगत पर, वो बड़े, एक तो होता है ना कोई खुश हो गए, एक होता है खुशी के आंसू निकल आए उनके, वो इतने खुश हो गए आपसे। जब द्रवहि दीन दयाल राघव, साध संगति पाई। फिर आपको साधुओं की संगत मिल जाती है, जो लोग संत हैं उनकी संगति आपको दे देते हैं, जब वो बड़े खुश होते हैं। ये नहीं है कि वो खुश हो गए आपकी फैक्ट्री एक और लगवा देंगे, आपको करोड़पति से खरबपति बना दी जाएंगे। कोई लोग वो कुछ और हैं, कहीं और बैठे हुए हैं। और यही नचिकेता की कहानी की खूबसूरती है। वो मांगते क्या है, ये खूबसूरती है उसकी। तो जब द्रवहि दीन दयाल राघव, साध संगति पाइए। और यहां भी कहा है तुलसीदास जी ने, एक जगह ये भी कहा है कि संत विशुद्ध मिलहि परते ही। उन लोगों को विशुद्ध संत मिलते हैं। एक तो शुद्ध होता है, एक शुद्ध के भी शुद्ध संत किनको मिलते हैं? संत विशुद्ध मिलहि परते ही, किनको? चित वही राम कृपा कर दे ही। जिन पर भगवान राम देखकर, चितवन मैंने होता है टेढ़ी नजर से देखकर कृपा करते हैं। सिर्फ कृपा नहीं करते रिमोट कंट्रोल के जरिए से, देखकर कृपा करते हैं। ऑनलाइन वाला काम नहीं है, फेस टू फेस, रूबरू करके भगवान आपको अपने सामने खड़े करके आपकी तरफ देखकर कृपा कर देंगे। फिर क्या होगा? संत विशुद्ध मिले ही परते ही, उनको विशुद्ध संतों का मिलन होता है। यही भविष्ण जी ने कहा हनुमान जी को देखकर। जलती हुई लंका में राम राम कर रहे थे, उतर आए नीचे आ गए हनुमान जी।
और देखा विभीषण जी खड़े हुए हैं। विभीषण जी खड़े हो गए, इधर साक्षात हनुमान जी उनके सामने खड़े हुए हैं, और विभीषण जी ने हाथ जोड़ लिया और कहा, अब मोहे भाग भरोसा हनुमंता, कि हे हनुमान जी, अब मुझे भरोसा हुआ है, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। हरि की कृपा के बगैर संत नहीं मिलते, और सब कुछ मिल जाता है आपको। वो विशुद्ध उनको मिलेंगे जिनका हृदय शुद्ध हो गया है कर्म करने से, दूसरों का भला करने से। तो दूसरों का नुकसान करने से सबसे बड़ा नुकसान अपना होता है, और वो ये होता है कि हमारे अंदर वो लालसा प्रभु नहीं पैदा करते जानने की, अपने आप को मुक्त करने की। और ये इस जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप यही है कि ना एतद, हाँ, अक्षरम अविदित्वा सा कृपणा, कि जो इस जिंदगी में आकर उस परम परमेश्वर को नहीं पाता, उसकी जिंदगी वेस्ट जाती है। तो ये इससे बड़ा और नुकसान क्या हो सकता है। इसलिए अगर आप कहेंगे कि जी हमने क्यों कर्म करें बगैर फल की इच्छा किए हुए, धार्मिक कन के धर्म का फल क्यों छोड़ें, इसलिए उससे आपका दिल प्योर हो जाएगा, साफ हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। नमाज कबूल ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹੂ, जिना दिल दी सफाई की थी, मन का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ध्यान औरों का उठा, उसके बिठाने के लिए, एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवस, फिर ठिकाना क्या मिले उसके ठिकाने के लिए, मन का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए। तो ये मन का हुजरा साफ हो जाएगा हमारा, और उस साफ हुजरे में प्रभु जो हैं, परम परमेश्वर हैं, वो अपना आनंद जो है हमें दे देंगे। यही भगवान अर्जुन को बार बार कह रहे हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। ये कहा है उन्होंने, प्रीति पूर्वक करना है सारा काम, प्यार से, ऊपरे दिल से नहीं करना। काम सारा प्रीति पूर्वक करना है, जो भी करना है, चाहे वो संसार का काम है, चाहे वो प्रभु का काम है। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। जो लोग इस तरह से मेरी भक्ति में लगे हुए सतत हैं, सतत युक्त हैं, बिल्कुल पूरी तरह से सतत युक्ता नाम, बड़े प्यारे शब्द हैं, सतत लगातार युक्त हुए हुए, योगारूढ़ हुए हुए, तेषाम उनको, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम, मुझे भजते हैं, ये भजना है। अब भजना तो कई कई तरह का है? कई तरह भगवान को लोग भज सकते हैं। जैसे वो रामचंद्र जी के बारे में कहा है किसी ने कि उनको जिनो राम राम सब को करे, राम राम सब को करे, ठग ठाकुर और चोर। कोई भी कर सकता है राम राम, राम राम सब को करे, ठग ठाकुर और चोर, बिन बिन प्रीति रीझे नहीं, तुलसी नंद किशोर। नंद किशोर कहा है यहाँ पर उन्होंने, कहते प्यार के बगैर वो खुश नहीं होते जो नंद किशोर हैं, जो किशोर हैं नंद के लाला हैं। तो ये जो अंदाज है तुलसीदास जी का, ये बताने का कि जिन प्रेम कियो, जैसे गुरुओं ने कहा है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। तो तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो मुझे प्रीति पूर्वक भजते हैं, उनको मैं क्या देता हूँ, ददामी बुद्धि योगम, उनको मैं बुद्धि योग दे देता हूँ, ज्ञान दे देता हूँ। हाँ, ये है मिलना, आपको मिलने वाली चीज ये है। ददामी दे देता हूं उनको, ददामी मैं दे देता हूं, बुद्धि योगम तम उनको, उनको तम माम उपयांति थे, फिर वो मुझे आके मुझे प्राप्त हो जाते। सबसे बड़ी बात कह दी उन्होंने कि जिनका मन जो है वो मेरे में लगा हुआ है प्रीति पूर्वक, और उनको कुछ और नहीं चाहिए, उनको कुछ और नहीं चाहिए, उनको मैं ज्ञान दे देता हूं। ददामी बुद्धि योगम, ये नहीं कहा कि उनकी मैं फैक्ट्री लगवा देता हूं, या उनका मैं ध्यान लगवा देता हूं, या उनकी कुंडलनी जागृत कर, ऐसा कुछ नहीं कहा। ददामी बुद्धि योगम, उनको मैं ज्ञान दे देता हूं, बुद्धि योग दे देता हूं, तम माम उपयांति थे, जिससे वो मेरे तक पहुंच जाते हैं। रास्ता बताना है। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं, धर्म पर ना अटको, मोक्ष तक लेके जाना है तुम्हें मैंने। और मोक्ष किसको मिलेगा, जो शरण लेगा उसकी, जो हमारे सबके अंदर मूर्तिमान होकर, कीर्तिमान होकर, हमारी अंतरात्मा के तौर पर बैठे हुए हैं। तो ये भूमिका के बाद मैं कुछ आज कठोपनिषद की बात करना चाहूंगा। कठोपनिषद बहुत ही प्यारा उपनिषद है, बहुत ही प्यारा है। और अगर
बिंदुओं से थोड़ा बहुत समझ आया, 1%, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको ये स्टोरी पूरी तरह से समझ आ जाए आज, तो मतलब कि यहीं और अभी काम बन सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें पूरा टेम्पलेट है, हाउ टू बिकम ए सीकर, सीकर कैसे बनना है, पूरी उसकी कीमिया बताई गई है। तो इसका पहले तो मंत्र है, वो जो मंत्र हम बोलते हैं ना, शांति मंत्र, वो कठोपनिषद में आता है, ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अब क्यों मंत्र करना है? देखिए, जो नचिकेता है वो एक स्टूडेंट है, और जो धर्मराज है, यमराज है, वो ही इज द आचार्य ऑफ ब्रह्म विद्या। तो ये यहां से ओम, ओम जो है प्रभु का नाम है, पर ब्रह्म का नाम है। जो भी काम करना है उनका नाम लेके करो। मैंने शायद आपके साथ, मुझे याद नहीं कि इस प्लेटफॉर्म पर बातें शेयर हुई थी। मदन मोहन मालवीय जी की माता ने मरने के वक्त उनको ये कहा था कि बेटा, मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट बता के जा रही हूँ जिससे आपके सारे काम ठीक हो जाएंगे। और वो ये थी कि जो भी काम करने लगो, जहां भी जाने लगो, पहले 4 बार नारायण 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 कर लो, तो आपका काम सिद्ध हो जाएगा। ये मदन मोहन मालवीय जी की माता जी की बात है, जो हमें ऋषिकेश में कुछ लोगों ने बताई, संतों ने, और ये लिखी भी हुई है। अगर किसी को इच्छा हो तो हम इसका रेफरेंस भी दे सकते हैं। मगर ये चीजें जो हैं शर्मा जी, ये बहुत कम लोग मांगते हैं। ये इस प्लेटफॉर्म पे हमने पहले बात नहीं करी, आज पहली बार बताइए आपने। हाँ, तो ये नारायण 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 4 बार आप करेंगे तो उससे क्या होगा, नर के जो नारायण जो है वो नर के आयन है, नर आयणा इति नारायणा। जो जो नारायण है वो हम सब के गोल हैं, अल्टीमेट गोल हैं। तो उनको आपने उसको बगैर किसी, हमारे माता जी जब चिट्ठी लिखते थे तो पहले ओम लिख देते थे, ओम श्री परमात्मा ने नमा करके चिट्ठी लिखते थे। और संतों का भी यही होता है, वो हमेशा भगवान को आवाहन करके उनको बुलाकर कि आप हमारी हमारी मदद करो, हमारे काम में ना जो उसका जो बरकत डालो हमारे काम में। तो इसलिए आप जब भी घर से बाहर जाएं तो हमारी आपसे ये छोटी सी गुजारिश है कि आप प्रभु को उनका आवाहन कर लीजिए, नारायण 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 करके आप जाइए। तो ये मदन मोहन मालवीय जी की माता जी ने उनको बताई थी, और ये बात हमें हनुमान प्रसाद पोदार जी, जयदयाल गोविंदका जी और कुछ और संतों के लेखों में, प्रवचनों में भी सुनने को, देखने को मिली है। इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की। आज देखिए रेलेवेंस कैसे आया, क्योंकि आज वाराणसी से, काशी से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो फेसबुक पर मेरे पास आ रहे हैं, और मदन मोहन मालवीय जी की देन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। देखिए आज ये पहली बार हुआ है, ये पहले हमने शेयर नहीं किया यहाँ पर, आज जो आपने दिया। चलो धन्यवाद। आज याद करवा दी भगवान ने, भूली बिसरी बात। तो उपनिषद शब्द का मीनिंग, तो पहले मेरी कोशिश होगी कि आज इसके थोड़े से डीपर मीनिंग उजागर किए जाएं। ओम सहना ववतु, सहनाओ सहनाओ ववतु, हम दोनों, हम दोनों, हम सब। अब यहां पर हम दोनों नहीं कहेंगे क्योंकि यहां पर हम सब कहे जाएंगे, मैं वक्ता और आप सब। सहना भवतु, हम सब का, हम सबको प्रोटेक्ट करो, हमारी रक्षा करो। रक्षणम, सहना भवतु भवतु रक्षणम, हमारी रक्षा करो। किस चीज से रक्षा करो? क्योंकि हो सकता है कि हमारे मन में ये ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा अब हो गई हो, तो इसकी रक्षा करो इसकी। और इस रक्षा, ये जो योगक्षेम वाहम हम कहा है भगवत गीता 9th चैप्टर 22nd श्लोक में, भगवान कृष्ण ने कहा है
कि उनका मैं योगक्षेम कर देता हूं। तो ये जो सहना भवतु है, प्रोटेक्शन है, ये एक क्षेम है कि जो भी अच्छाई हैं, जो भी अच्छी चीजें हैं, उनकी रक्षा करो और हमारे दोनों में वो चीजें रहें, बनी रहें, सुनने वाले और बोलने वाले दोनों के जीवन में उन चीजों का प्रोटेक्ट करो। सहना भवतु सहनो भुनक्तु, और सिर्फ रक्षा ही ना करो, उनका पालन भी करो, नरिश करो उनको। क्योंकि हो सकता है लोग शुरू शुरू में इंटरेस्टेड होते हैं ज्ञान को प्राप्त करने में, थोड़ी देर बाद उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, तो उसके ज्ञान का पालन भी करो, उस इच्छा का, जो इच्छा हुई है किसी को, ब्रह्म अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा हुई है, तो उसके पालन का सहना भवतु सहनो भुनक्तु, उसका पालन करो, पहले रक्षणम फिर उसका पालनम। क्योंकि होता क्या है, पीपल हैव ए डिजायर, वो कभी होता जिंदगी में मुश्किल आ गई, दुख आ गया, मौत हो गई किसी की खुदा ना खास्ता, तो उस वक्त क्या हुआ, दिल में आया, या आप कभी यू वेंट टू अटेंड ए फ्यूनरल सेरेमनी, वहां पर यू विल बी वेरी काइंड ऑफ सैड, कहेंगे जिंदगी का मकसद ये है, मैं ऐसे दौड़ भाज कर रहा हूं, इतनी क्या लेके जाना है, आखिर तो यहां आना है। अब ये जो आपके दिमाग में वैराग्य की भावना आई, ये जब तक आप पार्किंग लॉट तक नहीं पहुंचे, अपनी कार तक या गाड़ी तक, जब आप अपनी गाड़ी में बैठे और ये हवा हो गई, तो भगवान से प्रार्थना है इस मंत्र के जरिए कि पहले तो जो हमारे अंदर विद्या को पारा प्राप्त करने की भावना आई है, उसकी रक्षा कीजिए, फिर उसको आगे बढ़ाइए, पालन कीजिए उस गुणों का। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहि। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारी बुद्धि मेधावी होनी चाहिए। इसमें बुद्धि में एक सूक्ष्मता, सूक्ष्म बुद्धि होनी चाहिए हमारी, क्योंकि तत्व बड़ा छोटा है, बड़ा सूक्ष्म तत्व है आत्मा, बहुत छोटा है। देखिए, आपको अगर आपने किसी चीज को जानना है तो आपसे दूर होनी चाहिए। मैंने इस फोन के बारे में जानना है तो मैं फोन को दूर करूंगा, अगर ये बिल्कुल पास होगा मेरी आंखों के, मैं नहीं देख सकता, मैं जान नहीं सकता, तो जानने के लिए थोड़ा डिस्टेंस बनाना पड़ता है। मगर आत्मा तो बिल्कुल अंदर का अंदर है, डिस्टेंस हो ही नहीं सकता, उसको जानने में तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, बड़ी बुद्धि सूक्ष्म चाहिए। इसलिए प्रार्थना है भगवान से, सहवीर्यम करवावहि, हे प्रभु हम दोनों का, बोलने वाले का और सुनने वाले में एक कैपेसिटी, डिजायर एंड कैपेसिटी एक दे दो, ताकि इस ज्ञान की प्राप्ति के वो अधिकारी बन जाएं, बोलने वाला भी और सुनने वाला भी, दोनों का। क्योंकि भगवान शंकराचार्य जी ने जब कमेंट्री लिखी इस पर, तो यमराज को और नचिकेता दोनों को प्रणाम किया। ये बहुत बहुत ही एक बड़ी ही विलक्षण बात है। वो गुरु को प्रणाम करते हैं हमेशा, यहाँ स्टूडेंट को भी प्रणाम किया है, क्योंकि स्टूडेंट बड़ा खास है, नचिकेता बहुत ही खास स्टूडेंट है, तो मंत्र भी बड़ा खास है। ओम सहना भवतु, कि हमारी प्रोटेक्शन करो, हम सबकी। प्रोटेक्शन का मतलब ये नहीं है कि मतलब कि कोरोना से प्रोटेक्शन करो, ऑफ कोर्स कोरोना से प्रोटेक्शन तो होगी होगी, मगर यहाँ पर जो हमारे दिल में आत्म ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हुई है, उसका जो संपादन हुआ है, उसकी रक्षा प्रभु कीजिए, और फिर उस इच्छा को और बढ़ाइए, तीव्र कीजिए कि मैं अपने आप को जानूं, और फिर मेरे अंदर और सुनने वालों के अंदर एक कैपेसिटी दीजिए कि इस ज्ञान को हम समझ सकें, क्योंकि ये बड़ा सूक्ष्म ज्ञान है। क्योंकि हो सकता है कि बदहजमी हो जाए, ये भी हो सकता है, कई बारी यू नो काफी कुछ हो जाता है, सुनने से इंडाइजेशन भी हो जाती है, तो खट्टे डकार भी आने हो सकते हैं। तो ये भगवान से प्रार्थना है कि सा वीर्यम करवावहि, तेजस्वी नावधीतमस्तु मावित विषावहि, और हमारी जो बुद्धि है वो तेजस्वी हो, धी तेजस्वी नाधीतमस्तु हो जाए, मस्त अस्तु, हमारी जो बुद्धि है वो तेजस्वी बन जाए। मे द ब्रिलियंस शाइन इन आवर माइंड, ताकि उस ब्रिलियंट शाइन से, लाइट से हम इस आध्यात्म विद्या का अच्छी तरह से संपादन कर सकें। मावित विषावहि, सबसे जरूरी बात शर्मा जी ये है, मावित विषावहि, हमारे बीच में कभी भी द्वेष ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो टीचर और स्टूडेंट के बीच में। ये है मंत्र, यहां से मंत्र शुरू हो रहा है, कठोपनिषद शुरू होगा यहाँ से,
ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सा वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। और 3 बार शांति क्यों कहा है? क्योंकि हमारे को 3 तरह की प्रॉब्लम होती है। एक तो अंदर बड़ा ताप है, उसकी शांति करनी है। सबसे बड़ा ताप अंदर है, फीवर का पूरा फैक्ट्री लगी हुई है, उस ताप को शांत करना है। बाहर भी ताप है, तो आधि आध्यात्मिक, आधि भौतिक और अधिदैविक, जो बाहर और जो प्रकोप होता है, कई बार सुनामी वगैरह आती है, देवताओं का प्रकोप होता है जिसे हम एक्ट्स ऑफ गॉड कहते हैं, उससे भी शांति हो और लोगों से भी कोई नुकसान ना हो। एक दूसरे की टांग बड़ी खींचते रहते हैं आजकल, तो वो सीढ़ी खींच देते हैं। टांग खींचने वाली बात नहीं करते, वो कहते छोड़ो, टांग खींचेंगे फिर चढ़ जाएगा, सीढ़ी खींच लो, तो उनसे भी हमारी रक्षा करो। तो ये सारा 3 तरह का ताप शांत करवाया भगवान से इस उपनिषद के मंत्र के जरिए से। नाउ शंकराचार्य जी गिव्स ए डेफिनेशन ऑफ उपनिषद। आज उसकी बात भी हो जाए। और इस उपनिषद को शुरू करने से पहले भगवान शंकराचार्य जी उपनिषद की डेफिनेशन देते हैं। द वर्ड उपनिषद हैज 3 पार्ट्स, उपा नी, ये तो उपसर्ग है, उपा नी उपसर्ग है, और शद जो है वो धातु है, वो मेन पार्ट है। उसका जो बेस वर्ड है वो शद या सत है। शद का मतलब जो है वो 3 मतलब होते हैं। पहले उपा, उपा का मतलब क्या है? नजदीक। शब्द है उपवास, उप मैंने नजदीक, वास जो हमारा किसी चीज के पास जाके वास करवा दे, who helps us to go get closer to something। तो उपा, उपा मैंने क्लोजर, अप्रोचिंग नियर समथिंग क्लोज। नी शब्द के कुछ मीनिंग हो सकते हैं। एक नी शब्द का मतलब है कि स्टूडेंट के, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द स्टूडेंट, नी मीनिंग कि बड़ा ही निश्चय पूर्वक बुद्धि होनी चाहिए आपकी कि मैंने क्या लेना है जिंदगी। ये ना हो कि वो जैसे वो शमशान वैराग्य होता है, शमशान के बाहर आए वैराग्य खत्म, उसे ओस वैराग्य कहते हैं। ओस, सुबह ओस पड़ती है, सूर्य किरणें आई, ओस बूंदे खत्म हो गई, तो वो कहता है ऐसा विराग ना हो। आपका निश्चय आत्म का बुद्धि होनी चाहिए, मैंने जिंदगी में पाना क्या, लेना क्या है जिंदगी में। अकृत कृतेन, जिसे वो मुंडक उपनिषद में आया है कि परीक्षाए लोकान सर्वान कर्मचदान ब्राह्मणो निर्वेद माया तद विज्ञानार्थम गुरुमेव अभिगच्छेत स्मृत पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। कि जब हमें ये पता लग जाएगा परीक्षा करके सब लोगों की, परीक्षाए लोगान कर्मचदान ब्राह्मणो निर्वेद माया, जो समझदार व्यक्ति है उसने सारी परीक्षा कर ली। किस चीज की? कि क्या काम करने से होता है और क्या काम करने से नहीं होता। करने से क्या होता है? जो चीज पहले ना हो वो बनाने से बन जाएगी। आत्मा तो पहले ही वो करने से नहीं होगी। ना अस्ति अकृत कृतेन, जो अकृत है, जो नहीं हो सकती, इटर्नल है, वो करने से नहीं होती। उसके ज्ञान के लिए, तद विज्ञान अर्थम, उसके ज्ञान के लिए गुरुमेव अभिगच्छेत, गुरु के पास जाता है। ऑनलाइन वाले गुरु के पास नहीं जाता, गुरु के पास जाता है। गुरुमेव अभिगच्छेत, स्मित पानी, हाथ में वो स्मित सूखे हुए वो लेकर, ट्विग्स, और किस गुरु के पास? जो श्रोत्रियम और ब्रह्मनिष्ठम है, जिसको वेदों का पूरा ज्ञान है, उपनिषदों का, और ब्रह्म में वो निष्ठ है, उसकी निष्ठा है, उसको और कुछ नहीं चाहिए। उसने ये नहीं है कि हमने आचार्य बनना है या कुछ कलगियां लगानी है अपने ऊपर या कोई पद्म भूषण लेना है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है उनका। उनका मकसद सिर्फ ये है कि हमारे पास कोई अधिकारी पूछने वाला आए, हम उसका कुछ कल्याण उसका हो जाए। संतों की सिर्फ यही इच्छा होती है। जिन लोगों से जिनका मौका मिला सुनने का, उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि दूसरे वाले, सुनने वाले का कल्याण हो जाए। जो आनंद हमें भगवान ने दिया है आपको भी मिल जाए। और उनका कोई मकसद नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं बनना, कुछ नहीं लेना, क्योंकि सब कुछ पा लिया उन्होंने। पा लिया था जो कि पाना, काम क्या बाकी रहा। जानना था सोई जाना, काम क्या बाकी रहा। उनका काम बन गया। इसलिए उनके लिए ये छोटे मोटे रिवार्ड वगैरह, अवार्ड वगैरह मिलेंगे, ठीक है, दूसरों की खुशी के लिए ले लेते हैं, मगर उनका अपना कोई मकसद नहीं है। उनका मकसद, उनका यही था अपने आप को जानना, वो पूरा हो गया। डाल दो हथियार, मेरी राय पुख्ताब हुई, लग गया पूरा निशाना, काम क्या बाकी रहा। उनका निशाना लग चुका है पूरी तरह से, उनके लिए कुछ करना बाकी नहीं है। तो उपा मीनिंग
नियर, नी मैंने नितांत के पूरी तरह से निश्चय कर लिया और पूरी तरह से खात्मा करे। और आखिर शद शब्द का मतलब है अवसाधना, शद मीनिंग डिस्ट्रॉइंग, के ये वो विद्या है, उपनिषद वो विद्या है जो बिल्कुल पास जाके, आपके दूर से नहीं, ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन वाला काम नहीं है, बिल्कुल पास जाके। और ये शद शब्द का मतलब एक और भी आम शब्द, आम जो लोग हैं वो जब उपनिषद का मीनिंग करते हैं वो ऐसे करते हैं। उप मीनिंग नियर, नी मीनिंग जिसे हम कहते हैं कि जी पूरी तरह से निश्चय पूर्वक, इन ए प्रॉपर मैनर। और शद मैंने किसी के चरणों में बैठ जाना, किसी के बिल्कुल पास होके कदमों में बैठ जाना। और वो विद्या जो गुरु के बिल्कुल पास जाके, ऑनलाइन नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं आज, ऑनलाइन नहीं, गुरु के पास जाकर उसके चरणों में जाकर मिलने से आपके अज्ञान का नितांत नाश कर दे। ये जो अवसाधन शब्द है, ये हमने कठोपनिषद पर जो स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज जी के प्रवचन से सुने, उसमें वो अवसाधन शब्द का मतलब वो कहते हैं उजाड़ना, जो कि अज्ञान को पूरी तरह नष्ट कर दे, उजाड़ दे। तो वैसे शंकराचार्य जी 3 मीनिंग लेते हैं शब्द के। एक शब्द का मतलब अहिंसा, दूसरा गति, और तीसरा उसका पूरी तरह नाश करना। तो वो विद्या शर्मा जी जो हमारे, जो अपने बारे में अज्ञान है, उसका अब हमारा सबसे नजदीक चीज कौन है? हमारी आत्मा। वो बिल्कुल हमारी आत्मा के पास आकर जो आत्मा का अज्ञान है उसका नितांत, नितांत मैंने जिसका कुछ बचे ही ना बाकी, कोई शेष बचे ना अज्ञान, पूरी तरह से रूट ब्रांच एंड ऑल, रूट ब्रांच एंड ऑल इग्नोरेंस का खात्मा कर दे। उस विद्या को उपनिषद कहते हैं। अब क्योंकि उस विद्या किताब में है तो हम उस किताब को भी उपनिषद कह देते हैं, मगर उपनिषद किताब में नहीं है, विद्या किताब में नहीं है। विद्या तो आपके दिल में है, किताब हेल्प करती है। बाहर का गुरु आपको अंदर को धकेलता है, he or she pushes you in, और जो अंदर का गुरु है वो अंदर से आपको खींच लेता है। बस यही काम है बाहर के गुरु का और अंदर के गुरु का। तो ये जो विद्या है अध्यात्म की विद्या, उसकी स्टोरी है नचिकेता। नचिकेता एक 8-9 साल का बच्चा है और उसके फादर जो हैं वो एक यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ पूरा हुआ तो दक्षिणा होती है, दक्षिणा यज्ञ की गुरु दक्षिणा थी। तो उस दक्षिणा में उन्होंने गायें दी, गायें, और वो गाय बूढ़ी थी, बूढ़ी गाय दी, दूध देती नहीं थी, बीमार थी। तो बच्चा 8 साल का, इतना विवेक उसका जागृत था, वो अपने पिताजी को, उसका दिल बड़ा दुखा। वो कहता मेरे पिताजी ने यज्ञ तो किया अच्छे काम के लिए, मगर ये देकर एक तरह से अधर्म इकट्ठा कर लिया। तो उसका दिल दुखा, तो वो खड़ा हो गया यज्ञशाला में और कहने लगा कि पिताजी आपने इन गांवों को तो दे दिया, हाँ? यज्ञ में होता जो आपके पास अच्छी चीज है वो दो। वो कहता मैं आपके सबसे अच्छी चीज हूं, आप मुझे किसको देंगे? ये कह दिया थोड़ा सा गुस्से में आकर, थोड़ा सा सरकाज़म में आकर भी कह दिया कि हु विल यू गिव टू मी। तो पहली बार कहा तो फादर ने इग्नोर कर दिया, दूसरी बार फिर कहा कि आप मुझे किसे देंगे, हु विल यू गिव इट टू मी, तो फिर इग्नोर कर दिया। तीसरी बार जब बच्चे ने कहा, नचिकेता ने, कि आप मुझे किसे देंगे, तो गुस्से में आकर पिता ने कह दिया मैं आपको मौत को देता हूं, आई एम गोइंग टू गिव यू टू द डेथ, आई गिव यू टू द डेथ। तो बच्चे ने सुन ली बात, वो अपने कमरे में गया और तैयारी कर ली, अपनी लठ लेकर उस पर अपने थोड़े कपड़े डाले और कहा कि पिताजी मुझे इजाजत दो, मैं यम के घर में जा रहा हूं। दूसरे धर्मों में तो बात की जाती है लाइफ आफ्टर डेथ, ये हुजूर वहां जाकर वापस आएंगे ज्ञान देने के लिए। तो ये ऐसी स्टोरी है। तो फिर ये बच्चा यहां से पृथ्वी लोक से मृत्यु लोक में, दैट्स द वे स्टोरी इज। अब ये स्टोरी सही है नहीं है, सत्य है नहीं है, ये मतलब नहीं है ऋषि का। इस स्टोरी से कुछ क्लैरिफाई हो रहा है, उसको पकड़ना है, उस मूल को पकड़ना है। तो वो बच्चा जाता है वहां और जाकर पता लगता है कि यमराज जो है वो कहीं गए हुए हैं, he has gone to Hawaii, मे बी टूर पर गए हुए हैं, थोड़ी सी वेकेशन, मिनी वेकेशन मनाने के लिए वो 3 दिन कहीं गए हुए हैं।
तो 3 दिन बाद आते हैं। तो ये बच्चा, ब्राह्मण का बच्चा, भूखा प्यासा बाहर गेट के 3 दिन तक वेट करता रहा। तो जब वो वापस आए, उनको बताया गया कि जी ये एक ब्राह्मण का बच्चा है 7-8 साल का, और ये आया हुआ है आपके इंतजार में, आपसे मिलना है, हमसे तो बात ही नहीं करता। वो कहता मैंने तो उनसे मिलना है, हमने तो सीधा उनसे मिलना है और किसी से नहीं मिलना। तो आप 3 दिन हो गए इसकी वेट करने की, और अच्छा नहीं होता, अतिथि देवो भवो होता है, अतिथि है देव है, तो आप थोड़ा सा, तो उनको भी अच्छा नहीं लगा यमराज जी को। तो यमराज जी ने उनको कहा और उनको बड़े प्यार से अंदर लेके आए, उनकी सेवा वगैरह की और माफी मांगी कि मैं आप व्हेन यू केम आई वाज नॉट हियर, सो प्लीज फॉरगिव मी, और मैं आपको 3 वर देता हूं। 3 दिन आपने वेट की, आई गिव यू 3 boons, आप 3 वर मांगिए। अब देखिए नचिकेता क्या मांगता है, ध्यान दीजिए जरा, पूरे ध्यान से स्टोरी सुनिए और उसके मांगने के पीछे भाव क्या है उसका। तो पहला वर वो मांगता है कि मैं जब वापस जाऊं, तो इसका मतलब वापस जाना चाहता है वो क्योंकि यहाँ रहने के लिए नहीं आया, उसने अपनी जिंदगी अभी जीनी है, बच्चा है अभी, उसने बड़ा कुछ करना है अभी वहां जाकर पृथ्वी पर। कहता जब मैं वापस जाऊं तो मेरे पिताजी को मुझे यहाँ भेजने से कुछ नाराजगी हुई, उनको अच्छा नहीं लगा है कि मैं यहाँ आ गया हूँ। किसको अच्छा लगता है उसका बच्चा इस उम्र में वहां चला जाए। तो जब मैं वापस जाऊं तो आप ये वर दीजिए कि मेरे पिताजी का मेरे प्रति वही प्यार बना रहे जो पहले था। देखो क्या मांगा उन्होंने, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, पिताजी के लिए मांगा, क्योंकि पिताजी के मन की शांति, ताप शांत करना है उसका। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको वर देता हूं। दूसरा वर उन्होंने मांगा, पहला वर मांगा अपनी फैमिली के लिए, अपने पिताजी के लिए। दूसरा वर मांगा, कहते हैं कि दुनिया में यमराज जी मैंने देखा है कि दुनिया बड़ी दुखी है, कभी खुशी कभी गम वाले गाने गाती रहती है। आप कुछ ऐसा बताइए मुझे जिससे ये जो कभी खुशी कभी दुख का गम वाला चक्कर है, ये जो संसारी है, दुखी सुखी बनने का काम छोड़ जाए और सुख उसमें संपादन हो जाए। तो यमराज जी उसे एक यज्ञ बताते हैं, अग्नि का, अग्नि यज्ञ बताते हैं, और वो कहते हैं कि ये यज्ञ जो है वो स्वर्ग को देने वाला है। यानी कि जिस व्यक्ति का दिल साफ है, जिस व्यक्ति के दिल में कोई द्वेष नहीं है, वो उसका दिल स्वर्गी है, स्वर्गी बन जाता है। तो उसका प्रतीक भी आप स्वर्ग ले सकते हैं। तो वो यमराज इतना खुश हुआ बच्चे पर, वो कहने लगा 3 वर तो तूने मांगे, एक मैंने अपने ओर से दूंगा आपको। वो कैसा कि ये जो अग्नि है ये नचिकेतस अग्नि के रूप में मशहूर हो जाएगी। इस अग्नि को ही नचिकेतस अग्नि कहा जाएगा, इस यज्ञ को। तो वो यज्ञ का उसने वर दे दिया। अब तीसरे वर पर बात आ गई। अब तीसरा वर देखिए, वो अपने लिए मांगेगा वो पहला वर अपनी फैमिली के लिए, दूसरा सारे संसार के लिए, सबका फायदा हो, सब खुश हो जाएं, ये यज्ञ करें और इस यज्ञ से सब संपान हो, भगवान मंगल है, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम हो जाए सबका। तो ऐसा वर मांग लिया उन्होंने नचिकेता अग्नि के जरिए से, नचिकेता फायर कहते हैं इसे। तीसरा वर मांगा, उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि मरने के बाद, कुछ कहते हैं कि आत्मा रहती है, कुछ कहते हैं आत्मा नहीं रहती। अब आपको तो पता ही होगा, आप तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं आत्मा का, तो आपको तो पता होगा। अब देखिए उसके प्रश्न का मतलब देखिए, वो तो वहां से आया है यहां पर, उसको तो पता है कि मरने के बाद आदमी रहता है। ये प्रश्न नहीं पूछ रहा, उसका प्रश्न ये नहीं कि आत्मा मरने के बाद आत्मा बचती है, वो तो पक्का पता उसको। ही हिमसेल्फ इज ए लिविंग प्रूफ कि डेथ होगी उसकी, अब वो यहां आ गया मृत्यु लोक से, यहां तक आ गया है वो। उसका प्रश्न है कि वो आत्मा जो है उसका स्वरूप क्या है। यमराज उसे कहते हैं, वो कहता है यार 8 साल का बच्चा है, प्रश्न कैसा कर रहा है? इसके अभी निंटेंडो खेलने के दिन है, इसके अभी पोकेमॉन की गेम्स, वो वीडियो गेम्स खेलने के दिन है, ये कौन सा प्रश्न लगा दिया इसने कि आत्मा का क्या बनता है मरने के बाद। तो यमराज कहता है ये मेरे से ना पूछो, डोंट आस्क मी दिस। इसके बारे में तो देवता तक कंफ्यूज्ड हैं, इवन देवतास डोंट नो व्हाट इट इज। तो वो कहता देखो बच्चा, तू थोड़ा सा ध्यान से सुनो जरा, मैं तुमको इस सारे पृथ्वी का राज्य दे देता, मतलब उसको प्रलोभन दिया, मैं आपको जितना पैसे से खुशी हो सकती है, जितना आनंद हो सकता है आपकी जिंदगी में, है
वो डांसिंग दिस एंड दैट दे सकता हूं आपको, और भी बड़े प्रलोभन दिए उसने। तो बच्चे का जवाब सुनिए, वो कहता है ऐसा है हुजूर, मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये चीज रहने वाली नहीं है, जो भी आप मुझे ऑफर कर रहे हैं। और एक और खास बात उसकी ये थी, उसके दिमाग में ये बात थी कि जो आदमी आपको जो देना नहीं चाहता वो हमेशा कीमती चीज होती है। उसको पता था बच्चे को कि जो और चीजें ऑफर कर रहे हैं इसका मतलब उसकी कीमत कम है। जब आप खरीदने जाते हैं पैसा देते हैं क्योंकि पैसे की कीमत कम, चीज की कीमत ज्यादा, तभी आप खरीदते हैं। तो वो उसको लगा कि ये चीज इसलिए ऑफर कर रहा है, तो वो कहता है मैंने कुछ नहीं और लेना, आप मुझे उस आत्मा के बारे में बताइए जिस आत्मा को जानकर फिर और कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता। तो हुजूर ये कठोर उपनिषद की स्टोरी है। और उसके बाद वो इतने खुश होते हैं। देखिए वो टीचर हैं, वो तो उसके टेस्ट ले रहे थे। एक टीचर के लिए इससे खुशी की बड़ी बात और कोई नहीं है कि कोई अधिकारी स्टूडेंट उसको आके अच्छा प्रश्न करे। परिप्रश्नेन किया है भगवान कृष्ण ने, जैसे कहा था अर्जुन को, परिप्रश्नेन तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तदर्शिना। तो उसने परिप्रश्न किया है और ये ज्ञानी है धर्मराज, और ब्रह्म ज्ञानी है। अब उसको वो ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन करेंगे अगले चरणों में। इसके 2 अध्याय हैं और 3 वल्ली एक एक अध्याय की है, 6 वल्ली हैं, 2 अध्याय हैं। और इतना सिंपल आत्मा के स्वरूप का निरूपण शायद ही किसी और किताब में मिले। तो अगले रविवार जब आपसे मुलाकात होगी तो इस विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाएगा। अब जो शर्मा जी का है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आज बहुत सारे लोग, और आज मुझे बड़ी खुशी है, हमारी एक रॉयल यूनिवर्सिटी है गुवाहाटी में, उसके ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर एसपी सिंह जी, आज मुझे उनका पूरा नाम भी पता लग गया, संजय प्रताप सिंह जी, उन्होंने भी आज ज्वाइन किया। और आपके जो अधिकारी जी का आपने शुरू किया था प्रश्न, जहां से अधिकारी जी फेसबुक पर आए हुए हैं, उनका भी बड़ा अच्छा है। अशोक सेठी जी जुड़े हैं आपके साथ अमृतसर से, और उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही, कहते कि ऑनरेबल प्रोफेसर धीमान जी, Pandit Madan Mohan Malviya ji started his freedom movement and political career from Amritsar. Very nice. And we have a main road named after him. This is Ashok ji from Amritsar. So I just should share with you. एक मैडम अनीता जी हैं, मुझे नहीं पता कहाँ से हैं क्योंकि मेरे पास पूरी डिटेल नहीं है उनकी, लेकिन उनके इतने सारे पोस्ट हैं और इतना कुछ उन्होंने दिया। एक दीश सूरी जी हैं, एक पूनम जी हैं, और बहुत सारे लोगों के जो है इनपुट्स हैं। और आपको इस बात की खुशी होगी कि मेरी माँ के स्वास्थ्य में आपके ये विचार सुनने के बाद वो साइड में बैठ के आपका सारा प्रोग्राम अच्छे से सुन रही, और उन्होंने इतना आशीर्वाद आपको दिया है मेरी माँ की तरफ से। उन्होंने ये कहा कि प्रोफेसर धीमान जी को, वो मतलब आपकी वाणी सुन के, आपकी सारी बात सुन के स्वस्थ हो गई हैं। और वो मतलब हमारे भी माता जी हैं, आपके सिर्फ नहीं, ऐसे ना कि ये हमारी माता जी हैं। सेकंड फ्लोर तक आ गई हैं मेरे पास, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ उसमें। तो मेरी माँ जो है, पीछे आ जाओ, ये मतलब ये जी इन्होंने पूरा प्रोग्राम सुना आपका, और ऊपर आ गई, यहाँ पे बैठ गई, और इन्होंने सारा सुना ध्यान से। ये मुझे इतना ये प्यार करते हैं कि जब मैं जाता हूं तो अपने हाथ से मक्खन निकाल के खिलाते हैं, अपने हाथ से। आ गई सेकंड फ्लोर में, मैं हैरान हो गया हूँ कि नमस्कार माता जी, नमस्कार नमस्कार। नचिकेता का नाम तो मैंने भी सुना, लेकिन इसका पूरा डिटेल आज आपने बता दिया। बहुत अच्छा। इन्होंने मतलब सारा आपका, सारी आपकी वाणी इन्होंने पूरी ध्यान से, और वहां बैठी रही चुपचाप, मुझे कहती रही मेरे को यही बैठ के सुनने दे तू मेरे को। तो अब माँ को कौन मना कर रहा है? She came second floor, she sat over here. Look at the energy and look at the strength. इससे बड़ी मैं और क्या कहूँ? She is not keeping too well, but then she came to second floor. She sat here. She listened to the whole program. और जो पत्र आपने दिखाया, मैं आज आपकी खुशी महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बहुत करीब से इतने सालों में देखा है।
जो खुशी आपको ऋषिकेश जाके, जो खुशी आपको उनके चरणों में बैठ के मिलती है, और जो उन लोगों के साथ मिलके, क्योंकि मैं कई बार इसका विचार करता था अपने मन में। आप भारत आते हैं, आप जब भी अमेरिका से आते हैं, लोग यहाँ पर बड़ी बड़ी सिटीज में, बड़ी बड़ी जगहों में, और आप मुझे हर बार ये कहते हैं चलो ऋषिकेश इकट्ठे चलें, चलिए आज हरिद्वार इकट्ठे चलें, आज वहां चलें। तो मैं हर बार ये सोचता था कि ऐसा क्या है। फिर आप गुजरात, वो गिर गए, गुजरात के कुछ संतों के पास भी आप गए, फिर बैंगलोर के कुछ संतों के पास आप गए, तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। और आज एक शख्स जिन्होंने आपका प्रोग्राम सुना, मुझे नहीं पता था, उन्होंने कल मुझे बताया, कल पहली बार उनका व्हाट्सएप आया। ये एक प्रोफेसर राजेश सी जामपला जी हैं, ये विजयवाड़ा से हैं, और इन्होंने कल, क्योंकि कल भारत में नई एजुकेशन पॉलिसी का 1 महीना पूरा हुआ है, 29 जुलाई को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने दिया था, और 29 अगस्त कल था। इनका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था जो मैंने सुना, महसूस किया। और उससे पहले प्रोफेसर एसपी सिंह जी का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, वाइस चांसलर्स का। तो ज्ञान चारों तरफ से फ्लो कर रहा है, और जितनी बारीकी से, जितने सहज भाव से आप सारी चीज को रखते हैं, मेरा तो एक ही निवेदन रहेगा आपसे, जब तक ये श्वास है और जब तक ये जीवन है, मैं और आप, क्योंकि मुझे आपसे बहुत पहले जाना है इस यात्रा पर, लेकिन हर संडे सुबह 9:30 बजे, जब तक ये श्वास है, जब तक ये वाणी है, और जब तक ये जीवन है, ये समर्पित है कि हम भारत के उपनिषदों को, हमारी एंशियंट सिविलाइजेशन को, हिस्ट्री को, और आज आप जब आपने वो स्टीव जॉब की बात करी है, मुझे उसके बारे में भी नहीं पता था। पंडित मदन मोहन मालवीय जी की माता जी ने क्या बात करी, वो भी आज आपने बताया। और देखिए व्हाट ए कोइंसिडेंस कि आज पहली बार वाराणसी से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बहुत सारे प्रोफेसर जुड़े हैं इस प्रोग्राम में। मैं तो हैरान हूं कि ये हो क्या रहा है, मुझे खुद नहीं समझ आ रही कि ये हो क्या रहा है। शर्मा जी, ये जो सारा काम है ना, आपका है ये, क्योंकि आपसे आपसे जो सीखने वाली बात है वो ये दुनिया को सीखनी चाहिए कि आप छोटे बनकर बड़े काम कर रहे हैं। नहीं सर, मैं तो ये humble person, very humble person. I want to learn from all of you, और आप लोगों से जो मार्गदर्शन, और मैं सबसे सीखता हूँ। जितने लोग प्रोग्राम में आते हैं, मैं हर एक प्रोफेसर से, हर एक वाइस चांसलर से, हर एक से बहुत सारा ज्ञान पाता हूँ। हर एक के पास बहुत कुछ है। मेरी नोटबुक खुली है, और इस लॉकडाउन के अंदर 7-8 नोटबुक्स मेरी भर गई हैं। आई वॉन्ट टू बी द मोस्ट हम्बल स्टूडेंट टिल माई लास्ट डे। सो मैं तो चाहूंगा, इतने महानुभाव जुड़े हैं, मैं तो बल्कि वो इस विषय पर मेरे से 100 गुना बेहतर बोल सकते हैं। मैं तो एक छोटा सा साधक भी कहलाने के लायक भी नहीं हूँ। तो आपने मुझे मौका दिया, मैं इसलिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं तो अपने आखिरी श्वास तक ये चाहता हूँ कि हर संडे सुबह 9:30 बजे पूरे विश्व में हम इसकी फ्रेग्रेंस, और जो आज आपने बताया, और जिस तरीके से हमने अपने उपनिषदों की भी जर्नी और यात्रा शुरू की है, इस वाणी को तभी विराम दें जब इस शरीर को, इन श्वासों को विराम मिले। उससे पहले मैं चाहता हूं कि प्रभु मुझ पर कृपा करें, और हर संडे सुबह 9:30 बजे का ये कार्यक्रम पूरे विश्व में जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इस सब चीज को हम लेकर आगे चलते जाएं। देखो शर्मा जी, ऐसे है कि सोचो तो सिलवटों से भरी पड़ी है तमाम रूह। अगर कोई सोचे तो हमें अपनी रूह पर जो सिलवटें पड़ी वो भी नजर आ जाएंगी। सोचो तो सिलवटों से भरी पड़ी है तमाम रूह, देखो तो एक भी शिकन नहीं है लिबास पर। कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे हैं, उसमें कोई भी शिकन नहीं है, मगर रूह जो है हमारी सिलवटों से भरी पड़ी है। उन सिलवटों को कैसे खोलना है, उसके लिए सीरीज ये आपने शुरू करवाई है। तो मैं पूर्ण मदाह वो हमारी गुरबानी से शुरू करके के पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाव, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाँव। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।
थैंक यू जी। अब आप विश्राम कीजिए। अगले रविवार सुबह 9:30 बजे आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु हमेशा आपकी वाणी इसी तरीके से सारे संसार तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।